begins with a spark of something new, and today is no different. So prepare ourselves for an experience like never before. I am Neha Lad, and it's my privilege to welcome Professor Anup Thakur, a distinguished expert in Ayurvedic medicine and the head of Panchakarma, an institute of teaching and research in Ayurveda, Jamnagar. With over 24 years of experience, Professor Thakur has made significant contribution to Ayurvedic treatment methods, holistic wellness, and Panchakarma therapies. Today, Professor Thakur will share his deep insights on the timeless science of Ayurveda, holistic approach to health and wellness rooted in balance and natural healing. This session promises to enrich our understanding of how Ayurveda continues to be relevant in today's world. Now, I would like to call Dr. Krunal Soni, Associate Professor, School of Management, to welcome Professor Anup Thakur with a bouquet of flowers. So, good morning to all of you, and congratulations to all of you for joining the very prestigious and prime institute of GSSCU. In whichever I came to know that you are from the different faculties, different scholars, some from the science stream, some from the commerce or different level. Actually, I prefer to interact. I don't like to give lectures, and so in between also I will ask some questions to you, and I hope that I will get generous response. And don't feel ये कोई मैं बहुत बड़ा हूँ और बड़ा ज्ञान रखता हूँ और आपको कोई इस सब्जेक्ट में ज्ञान नहीं है and I am giving something special. It's not like that. Feel free. और एक जो आपने सुन रखा होगा शेर कि भाई आसमान में भी सुराख हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो. मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि फेंकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इफ़ आई आस्क समथिंग एंड देन यू कैन रिप्लाई. ऐसा हो सकता है कि वो गलत हो, पर कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो इट विल बी इंटरेस्टिंग इफ इट इज़ interacting, right? So I am actually, he has introduced, I started the Institute of Teaching and Research in Ayurveda. It's the first institute of national importance in Ayurveda at Jamnagar. I was the founder director to that. I was also working as a Vice Chancellor Gujarat Ayurveda University earlier. And right now I am working as a head department of Panchakarma in the same institute. So dear friends, we are going to discuss about the facts and fallacies of Ayurveda. You all have heard the word Ayurveda very well. In many houses, बहुत सारे घरों में शायद अच्छे से practice भी होता होगा, या who are the health aware, whose parents are health conscious, or some of the you scholars are also health conscious, might be looking for some aspects of the Ayurveda and herbal and Ayurveda. After COVID, everybody knows, I think. But what is it? सबको आयुर्वेद के बारे में क्या पता है? It's like a blind man's elephant. जिसने जो छुआ वो ऐसा है, जिसके हाथ में पूंछ आई वो हाथी का पूंछ के हिसाब से वर्णन करेगा, जिसके हाथ में he has a trunk in his hand, तो वो आयुर्वेद को ऐसे मानेगा. But today I am going to give a glimpses, a bird eye view, overall view of the Ayurveda, which is very useful, and as an Indian, at least we must know, because it is our own system of medicine and the oldest system of the medicine on the earth. So what is Ayurveda? It's about harmony. आपने वर्ड सुना होगा एलोपैथी, देन होम्योपैथी. What is the meaning of allopathy and what is the meaning of homeopathy? Anybody knows that? कोई एंथ्यू हो तो, यूजुअली नहीं होगा. एलो मीन्स अगेंस्ट, पैथी मीन्स पैथी, right? System of medicine.
आपके बॉडी में जो भी कुछ हुआ है उसके अगेंस्ट करके उसको बिठा देना, दैट इज एलोपैथी। मीन्स आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरिया ग्रो हुए, बैक्टीरिया को दबा देना, कोई सिम्टम हुआ, एसिडिटी हुई, एंटासिड देना, एसिड को सप्रेस कर देना, मीन्स जो भी होता है उसको पकड़ के दबा के बिठा देना। भाई जो भी कल्प्रिट आया बिठा दो जोर करके, दैट इज एलोपैथी, राइट। आपने सब सुना होगा एंटासिड, एंटी एलर्जी, एंटी दिस, एंटी दैट, एंटीबायोटिक, ऑल दिस थिंग, राइट। सो इट इज अबाउट एंटी, अगेंस्ट, जो भी है उसको पकड़ के दबा देना, दैट इज एलोपैथी। होम्योपैथी मीन्स होम्यो, जो भी है उसको बढ़ा के वहाँ तक ले जाना कि वो जिसको कहते हैं ना दर्द का हद से गुजर जाना दवा होता है वाली बात, कि इतना बढ़ाना उतना बढ़ाना कि वो बाहर आके ख़त्म ही हो जाए, दैट इज होम्योपैथी। आयुर्वेद इज अबाउट बैलेंस ऑफ बोथ। व्हेनेवर इट इज रिक्वायर, समटाइम आपके दोष या आपके इन्फेक्शन या आपके बॉडी में जो गड़बड़ हुई है वो इतनी है कि आप उसको सप्रेस नहीं कर सकते। उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, आप दबाने की कोशिश भी करोगे तो टाइम बिंग दबेगा, पर जैसे वो थोड़ा टाइम होगा वो ढक्कन खोल के बाहर आ जाएगा। इन दैट सिचुएशन यू रिक्वायर टू ब्रिंग इट आउट, उसको जो भी है गड़बड़ है यू जस्ट ब्रिंग इट आउट, उसको बढ़ने दो, जितना बढ़ना है बढ़ने दो, और बढ़ाओ, बढ़ा के सब बाहर निकालो। भाई आप अपने आप को व्यक्त कर लो, कहाँ तक करोगे कर लो, हो गया। आपको मान लो कि करना है स्ट्राइक, बहुत धमाल करनी है, कर लिया, कर लो, बहुत कर लिया, उसके बाद ठीक ठाक से 10 बार को पकड़ के डाल दिया अंदर, बाकी अपने आप सेट हो जाएंगे। सो दैट इज व्हाट शोधन वी कॉल क्लियरिंग, है ना। तो क्लिनजिंग, जब आपके बॉडी में कोई भी इन्फेक्शंस या कुछ भी इतना बढ़ जाता है कि जिसको आप सप्रेस नहीं कर सकते, देन ब्रिंग इट आउट एंड देन बाकी जो बच गए उनको बिठा दो, दैट इज कॉल्ड शमन, शोधन एंड शमन। वो लेटर ऑन वी विल सी। सो इट इज बैलेंसिंग एक्ट, जहाँ जरूरत है वहाँ उसको बढ़ा के निकाल देना, जहाँ जरूरत है उसको दबा देना। बोथ द थिंग्स आर देयर, दैट इज इन आयुर्वेद, एंड सो इट्स अ बैलेंसिंग एक्ट। It is herbo-mineral. Ayurveda says that whatever on this earth is medicine. इस दुनिया में जो भी existing है, it's not on earth. They are saying in the Brahman, in the cosmos, whatever is there, it's a medicine, provided the person knows how to use it. Whether it is poison, whether it is whatever it is, whether it is bacteria, virus, whatever it is, if you know how to use it, it is a medicine. So whatever is there in the cosmos is a medicine. That is the principle of the Ayurveda. And so it uses herbs, minerals, metals, poisons, everything, wherever what is available. And that's why it's universal. And that's why it has sustained and survived since 5,000 years. Then it believes in the equilibrium. You know, it maintains equilibrium. If you have heard about the Buddha used to say that, Madhyam Marg, always go on the middle path with the balance. If you go to any extreme, this way or that way, you are not going to get success in the life, in your health, in any way. You have to maintain the middle path, and that is about the equilibrium. And in Ayurveda, medicine is given individualized, prakriti based. What is the prakriti, that we will discuss later on. But इनको जुकाम हुआ है और उनको जुकाम हुआ है, तो दोनों के लिए मेडिसिन सेम नहीं होगी इन आयुर्वेद. बोथ विल गेट डिफरेंट मेडिसिन बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट. ऐसा तो नहीं है ना कि ये 5 रोटी खाते हैं वो भी 5 ही रोटी खाते हैं. नो, ये 2 रोटी खाते हैं वो 5 खाते होंगे. इनको तीखा पसंद है, उनको मीठा पसंद है. So how the medicine can be the same for the both of them? Cannot be. For both of them, there is a difference in the pathogenesis. So medicine and treatment also should be different. One medicine cannot be same for everybody. And that is the speciality of Ayurveda. World is coming towards that slowly and gradually. अभी तक उनको ये नहीं पता है. And then
It's about the balance. And so for the public health, balance in what sense? Actually, allopathy, today's medical science is about the disease. आप कभी भी सुनते हैं तो क्या सुनते हैं? इस डिसीज का ट्रीटमेंट, उस डिसीज का ट्रीटमेंट. इट्स अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज. दे नेवर टॉक्स अबाउट द हेल्थ. आपने ये किया तो आप हेल्दी रहेंगे, आपने वो किया तो आप हेल्दी रहेंगे. Health is about only the, they are concerned with only vitamins and some supplements and that's all. But that's not going to give you health. So current medical system जो है, it is focusing on the disease. It's a talking about disease. Where the Ayurveda talks about the both. First health, last disease. Ayurveda says that if you get disease, then there is a problem with you. It's a very, unusual situation. They call it pragya aparad. Pragya means intellect. Aparad means insult. Your intellect, whenever you are mingling in something, कुछ भी आप गड़बड़ खाना खाते हैं, कुछ गड़बड़ करते हैं, 4 दिन नहीं सोते हैं, roughly you are doing something or you got कुछ भी ऐसी कंडीशन जो आप नहीं चाहते, आपका दिमाग कहता है, योर इंटेलेक्ट वॉर्न्स यू, मत करो मत करो, फिर भी आप नहीं सुनते. एक बार वॉर्न करता है, देन सेकंड टाइम इट वॉर्न्स यू, थर्ड टाइम इट वॉर्न्स यू, देन इवन you keep continue to doing that. That is a pragya aparad. You are insulting your intellect, not following your intellect. Then you will land into the disease. Even when you land into the disease, in the first and second stage also body warns you, है ना. जैसे जुकाम होने से पहले थोड़ा सा सर भारी हो गया या थोड़ा सा रनिंग नोज हो गया, फिर भी आप नहीं सुनते, जागते रहते हो या ठंडा लेते रहते हो, थोड़ा सा गला खराब हुआ, फिर भी आप उसको नहीं मानते, आपने गर्म पानी पीना नहीं शुरू किया या ऑल द प्रिकॉशंस यू डिडंट टुक, then you will land into the common cold, disease हो जाएगा. So when you don't follow your intellect, then only you land in the trouble. आयुर्वेद वहाँ से शुरू करता है कि आप जब गड़बड़ करना शुरू करते हो, वहीं से ऑब्जर्व करना शुरू करो. And this is not about the disease only. This implies in the every walk of life. आप जब भी कहीं भी फंसने वाले हो या कुछ भी गड़बड़ होने वाली है, your inner, if you listen to it, you have a habit, if you have inculcate the habit to listen to it, that warns you, रुक जा भाई, बहुत हो गया, आगे मत जा. फिर एक आध दो गड़बड़ भी हो जाती है, फिर भी बॉडी आपको वार्न करता है, दिमाग आपका वार्न करता है, दिस इज इनफ. इवन देन इफ यू डोंट लिसन टू इट, फिर बॉडी छोड़ देता है कि भाई अब जा, तेरा जो होना है होगा, मैं क्या कर सकता हूँ. एंड दैट हैपन्स. सो दैट इज about the disease, and Ayurveda starts from the root that आपको disease ही ना हो. And that's why in the olden days our sages, our ancients used to live 100, more than 100 years. हमारे वहाँ वो 4 आश्रम जो बताए आपने पढ़े होंगे कि भाई ये 25 साल के वर्ण आश्रम, राइट, लास्ट संन्यासाश्रम, कि भाई 75 to 100 आपको संन्यास लेना है. सो आपने जब पढ़ा होगा आपको आश्चर्य होता होगा कि ये व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. बट उस समय 100 years living for 100 years was very common, and 120 years was usual age. And why it was happening? Because they were living very healthy life. कैसे, वो हम चर्चा करते हैं आगे. So what Ayurveda consists of? Actually, it's about body constitution, it's about disease diagnosis, it's about preventive care, it's about panchkarma, it's about internal medicine and lifestyle counseling. All are the components of the Ayurveda. Ayurveda, जैसे अभी मुझे डॉक्टर कृणाल वॉज विथ मी एंड ही वॉज टेलिंग कि सर आपके आयुर्वेद में तो आई नो इट इज़ अ पंचकर्मा, तो इट्स लाइक अ ब्लाइंड मैन रैली फन. सबको मैं पंचकर्म कहूँगा तो बहुत सारे लोगों को पंचकर्म भी नहीं पता होगा. यू माइट हैव सीन, सबने देखा होगा पिक्चर
एक लेडी सोई हुई है और उसके ऊपर वो पॉट है और धारा हो रही है, देखा है? देखा है? अभी तो नाश्ता करके आए हैं, आई थिंक यू हैड अ गुड नाइट स्लीप, सो कोई तो हाँ बोलो, यस, राइट। सो यूजुअली आप किसी को आयुर्वेद कहो तो वो शिरोधारा पिक्चर में आती है, इट्स अ शिरोधारा, एंड सो लोगों को वही आयुर्वेद दिखता है। और आयुर्वेद में अगर मैं कहूँ कि प्रिवेंटिव तो सबको दिखेगा मसाज एंड स्पा एंड पंचकर्म, मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ मसाज एंड फर्मेंटेशन एंड वो पोटली करके करते हैं, दैट इज द ओनली पंचकर्म। Now I am audible? Thank you. So, everybody has a different aspect of the Ayurveda, but it starts from the Prakriti. You know, Prakriti is about your constitution, body constitution. आपकी जो जीनोटाइप्स है उसको फिनोटाइप्स के आधार से कैसे जानना? फिनोटाइप्स you know by your characteristics, your habits, and what you like, what you don't like, that's all phenotypes. And on the basis of the phenotypes, how you know your genotypes, that is known as a Prakriti. Then the disease diagnosis, Ayurveda has a unique way of the diagnosis of the disease. आपके पास laboratory नहीं है, कुछ नहीं है, तब भी आप diagnosis कर पाओगे, and it's the best way. If you are in the even the जंगल में है, आपको कुछ नहीं है, then even you will be able to diagnose. अभी तो हाल ये है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ, 4 पैथोलॉजिकल टेस्ट नहीं करोगे तब तक कोई कंफर्म नहीं करेगा कि आपको क्या है, राइट? बट आयुर्वेद हैज डेवलप्ड अप टू दैट वे कि आपको विदाउट लेबोरेटरीज 90% एक्यूरेट डायग्नोसिस हो जाएगा। एंड देन प्रिवेंशन, एज आई टॉक्ड, इट टॉक्स अ लॉट अबाउट प्रिवेंशन। देन द डिटॉक्सिफिकेशन, detoxification, that is removing the doshas from the body. जो मैंने कहा ना कि दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर उसको बाहर ही निकालो भाई, तो बहुत दर्द हो रहा है, दाओ निकलो और ख़त्म करो बात को, तो वो दैट इज़ अबाउट पंचकर्मा। देन इंटरनल मेडिकेशन एंड लाइफस्टाइल काउंसलिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाउ अब दुनिया ने समझना शुरू किया है कि लाइफस्टाइल इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और उसको अगर जब तक हम फोकस नहीं करेंगे सब बेकार है। यूजुअली इन ओल्डन डेज आपको ये कहा जाता था कि भाई आपको प्रॉब्लम हुई, ये एंटीबायोटिक ले लो, यू आर ऑल राइट, या आपको डायबिटीज हुआ, यू स्टार्ट दिस मेडिसिन एंड यू नॉट टू बॉदर अबाउट ऑल डूज एंड डोंट्स। नाउ दे हैव रियलाइज कि इससे काम नहीं चलने वाला, और धीरे धीरे वो उन्होंने कहना शुरू किया, नहीं नहीं ये आपको करना पड़ेगा, ये नहीं खाना है, ये ऐसे सोना है। नाउ दे हैव रियलाइज, बट नॉट इन ऑर्गेनाइज्ड वे। अभी भी वो आयुर्वेद से और ट्रेडिशनल सिस्टम से लेके आपको बात कर रहे हैं, बट देयर आर नो स्टडीज दैट। बट आयुर्वेद thousands years ago was well aware about the lifestyles, in which season how to live, in the daytime what to eat, when, कब जागना है, कब सोना है, क्या करना है, everything was known to them and it was done, and knowingly unknowingly आप सब लोग भी आयुर्वेद जी रहे हैं कहीं ना कहीं, because it is in our life as a Indian। आपकी मम्मा ने या आपकी नानी माँ ने या आपकी दादी माँ ने आपको कुछ कुछ चीज़ें कही हैं जो आप आज भी फॉलो करते होंगे, एंड इट इज़ नथिंग बट आयुर्वेद। This is the newest concept in the field of the medicine. It's upcoming concept. बहुत सारे डॉक्टर्स को भी पूछोगे कि what is P4 medicine, they won't be able to tell you. आपके कोई रिनाउंड डॉक्टर में परिचय में हो, उनको पूछना what is P4 medicine, they won't be able to answer because this is upcoming concept. मेडिसिन में जैसे मैंने कहा एलोपैथी इज लाइक दैट, आप किसी भी डिसीज को दबा दो, है ना, वो सिस्टम था। बट नाउ दे हैव नोन कि उससे काम नहीं चलना है, एंड कोविड हैज प्रूवन दैट थिंग। कोविड ने ये दिखा दिया कि हम कितने भी आगे बढ़े,
अभी भी ये HPMV वायरस का चल रहा है, सब डरे हुए हैं क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। भाई देयर आर एंडलेस वायरसेस ऑन दिस अर्थ, और आप कहाँ कहाँ लड़ोगे। तो इसके लिए ज़रूरी है ये P4, प्रिवेंटिव अप्रोच, प्रिडिक्टिव अप्रोच, promotive approach and personalized approach, and this all P4 Ayurveda has there. Preventive means आप ऐसे सिचुएशन बॉडी में बनाओ कि आपको प्रॉब्लम ही ना हो, आपको कोई डिसीज ही ना हो, आपका खान पान, रहन सहन, लाइफस्टाइल ऐसी हो जिससे आपको डिसीज हो ही नहीं। यू नो आयुर्वेद में एंटीबायोटिक्स नहीं है ऐसा नहीं है वो भी नेचुरल एंटीबायोटिक्स, पर वो अपने तरीके से काम करते हैं। और एंटीबायोटिक्स की उन्होंने ज़रूरत बहुत नहीं समझी। द रीज़न इज़ आपका कीला मजबूत हो तो फिर कोई टेंशन ही क्या है, बाहर से कितने भी अटैक करते रहें, जो भी अटैक आते हो आते रहे, नो इशू। आपका बॉडी अगर स्ट्रांग है, चाहे जो वायरस आए, जो बैक्टीरिया आए, क्या फ़र्क पड़ता है। इन कोविड ऑल्सो मैनी ऑफ यू नॉट गॉट इन्फेक्टेड, राइट, एंड some of you might have got infected even ठीक है, एक छोटा सा बुखार आया, बात खत्म हो गई। why that happened? Because your body was strong, your immunity was strong, you were knowingly unknowingly following the good things, and so you could survive very easily. भाई ये क्यों नहीं हो सकता कि knowingly we cultivate the habits and know about this और अपने आप को strong बनाए, ये हो सकता है। एंड दैट आयुर्वेद सेज अबाउट दैट। देन प्रिडिक्टिव, एज आई टोल्ड अबाउट द प्रकृति। प्रिडिक्टिव आपको क्या हो सकता है, दिस इज नॉट अबाउट ज्योतिष और कोई AI बेस्ड और कुछ इधर उधर से आइडिया लगा के। दैट आई टोल्ड यू अबाउट द प्रकृति। मैं अगर आपकी प्रकृति जानता हूँ, इफ आई नो दैट यू हैव अ पित्त प्रकृति, आई कैन टेल आपको ये डिसीज होने की संभावना है अगर आपने ऐसा 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 किया तो। एंड सो टेक दिस फूड, अवॉइड दिस फूड, डोंट डू दिस, ऑल द थिंग्स इफ यू विल टेक केयर, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं और आप फंसेंगे नहीं, आपको पता लग जाएगा। क्या, वो जब मैं प्रकृति की चर्चा करूंगा, आई विल टॉक अबाउट दैट। एंड देन द प्रमोटिव, आपने नाम सुन रखा होगा च्यवनप्राश, सबने सुना है, राइट। सो व्हाट इज च्यवनप्राश? इट्स अ प्रमोटिव ट्रीटमेंट, आपकी इम्यूनिटी को, आपके बॉडी टिश्यूज को एनहांस करके आपको प्रॉब्लम ना हो, वो ट्रीटमेंट, दैट इज नोन एज रसायन इन आयुर्वेद, एंड इट इज अ प्रमोटिव एस्पेक्ट एंड पर्सनलाइज। एज आई टोल्ड, आयुर्वेद थिंक्स अबाउट द इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन। एक को फीवर हुआ, सेम फीवर दूसरे को हुआ, देयर कैन नॉट बी अ सेम मैनेजमेंट, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल ऑन दिस अर्थ इज अ डिफरेंट एंटिटी एंड यू हैव टू मैनेज देम अकॉर्डिंग टू दैट। इवन नाउ स्लोली ग्रेजुअली मॉडर्न साइंस हैज स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि ये बात सही है। जो स्टूडेंट बायोटेक्नोलॉजी में या जेनेटिक्स में जाएंगे उनको मैं बता दूं कि in the genetic science there is a blast of information, but they don't know what to do with that information, because अभी वो segregation होके उसका कोई classification होके वो क्या है उसका meaning nobody knows, but Ayurveda knows since centuries, and they know what to do with the different genotypes, and that's why now the modern science is looking towards Ayurveda. So what is Ayurveda? Ayur means life, and Veda means knowledge. Knowledge of life, science of life. That is Ayurveda, and that's why everybody says Ayurveda is a science of life. Veda you know very well, and it is coming from the Atharva Veda. Ayurveda is a sub branch of the Atharva Veda. It's a knowledge of healthy, happy, balanced life, physically, mentally, and spiritually. Very important. Physically, mentally, and spiritually. Till date, medical science don't believe in the spiritually.
and mentally now they have started to understand the psychosomatic disorders and all those things कि आपके मन का भी आपके शरीर ऊपर बहुत असर है. अब धीरे धीरे वो एक्सेप्ट होना शुरू हुआ है, बट अभी भी ज़्यादातर वो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की ओर ही फोकस करते हैं. दे डोंट थिंक कि भी आपको बार बार कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो उसका दिमाग से भी कनेक्शन है. यूजुअली पीपल डोंट थिंक टिल डेट. कुछ एक्सपीरियंस फिजिशियन अपने हिसाब से समझ के चलते हैं, बट टिल दैट कॉन्सेप्ट इज नॉट देयर. वेयर द आयुर्वेदा सिंस सेंचुरीज बिलीव्स you have to manage the disease physically, that is physically, mentally and spiritually, and for all the aspect there is a treatment. It's a manual of preventing forthcoming disease, manual of curing chronic diseases, the most oldest organized traditional medicine which has history of continuous practice of more than 5,000 years, as I told. दिस इज अबाउट हाउ आयुर्वेद. एक थोड़ा सा मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं. सो कभी भी वेन एवर यू हियर अबाउट द आयुर्वेद, रिलेशन अबाउट द आयुर्वेद, आपको ऐसा ना लगे कि हमें कुछ पता ही नहीं है इस बारे में. आपने सुना होगा वात पित्त कफ. सुना है? कितनों ने सुना है? रेज योर हैंड्स. बिग नंबर. थैंक यू. सो व्हाट इज वात पित्त कफ? मैं आपको बताता हूं. पंचमहाभूत के बारे में सुना है? व्हाट इज पंचमहाभूत? कितनों ने सुना है? बस बहुत कम लोगों ने सुना है. बाकी सबको पंचमहाभूत क्या है नहीं पता. इट्स सरप्राइजिंग फॉर मी. पंचमहाभूत आकाश, वायु, क्या हुआ? जल, अग्नि, पृथ्वी. राइट? आकाश, वायु, अग्नि, जल एंड पृथ्वी. लाइटेस्ट टू हैवीएस्ट. पृथ्वी इज द हैवीएस्ट. आकाश मीन्स स्पेस, इज लाइटेस्ट. राइट? उसके बाद वायु, फिर जल और अग्नि, देन जल एंड वायु. आपकी, हमारी सबकी बॉडी ये पंच महाभूत से बनी है. एवरीथिंग एग्जिस्टिंग ऑन दिस अर्थ, दिस इज फ्रॉम पंच महाभूत, दिस इज फ्रॉम पंच महाभूत, दिस लाइट इज फ्रॉम पंच महाभूत. एवरीथिंग एग्जिस्टिंग ऑन दिस अर्थ इज मेड फ्रॉम द पंच महाभूत. इट्स अ डिफरेंट एटॉमिक, अलग अलग बन के वो बना गया है. सो जिससे ये बना है उससे ही मैं बना, उससे ही आप बने हैं, जिससे ब्रह्मांड बना है. एवरीथिंग. And so it is the concept, yatha pinde tatha brahmande, means whatever is there in cosmos is there in your body, and whatever is there in your body, it is in cosmos. You are representative of the cosmos. Your single cell is a representative of the cosmos. Can you believe it? अगर उसमें डेप्थ में जाओगे तो आपके समझ में आएगी. अभी तो वो बहुत फिलोसॉफिकल लगता है, बट दैट इज द रियलिटी. That is the reality. And आपने शाहरुख खान का एक डायलॉग सुना होगा, क्योंकि मैं शाहरुख खान को बीच में लाऊंगा तो जरा ज़्यादा समझ में आएगी बात, है ना. कोई मूवी में एक डायलॉग था कि कायनात से आप जो भी मांगो आपको मिल जाएगा, आप मांगो एक बार. सुना है कहीं? एग्जैक्ट डायलॉग तो मुझे याद नहीं, क्योंकि मुझे रहते नहीं याद में, इतना वो नहीं. बट कायनात पूरी आपकी खड़ी हो जाएगी अगर आप कुछ मांगोगे तो आपको देने के लिए. ये किसी मूवी का डायलॉग है उसका. व्हाई दिस हैपन्स? बिकॉज यू बिलोंग्स टू कायनात. आपके अंदर पूरी कायनात है, एंड दैट आयुर्वेद सेज, एंड दैट इज फैक्ट. इट इज अ रियलिटी. एंड सो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो आपके शरीर में है, इट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द कॉस्मोस इन योर बॉडी. एंड इफ यू नो टू बैलेंस इट, यू कैन मैनेज इट. आकाश और वायु, वो दोनों महाभूत बन के वायु दोष बनता है. देन अग्नि और जल, ये महाभूत बन के पित्त दोष बनता है. एंड जल एंड पृथ्वी, ये दोनों को मिला के कफ बनता है. सो आयुर्वेद हैज, आपके पूरे बॉडी की एंटिटीज जो है फिजियोलॉजिकल एंटिटी, दे हैव डिवाइडेड इन
these three, Vata, Pitta and Kapha. And then they have given the properties of Vata, Pitta and Kapha. And Pitta is almost represents the hormones and all the metabolism related things in your body. Kapha is about the body structure and the solid things in your body, and it's about the mucus and all those things, whatever is represents the Kapha. Whatever the communication is going in your body, the neurons and all the things, it represents Vata. So उन्होंने पूरे बॉडी के फिजियोलॉजी को वात पित्त कफ में बांट दिया. एंड देन whatever problem or imbalance happens in those Vata, Pitta, Kapha attributes, they will manage. In the कुछ लोग पंचमहाभूत की चिकित्सा भी करते हैं कि जैसे आपको नींद नहीं आ रही है या आपको रात को उठ जा रहे हैं, वैसे होता नहीं था पर अभी हो रहा है. वाई? भाई नींद वो दे बिलीव्स दैट इट इज अ आकाश या वायु महाभूत आपके बॉडी में बढ़ गया. आयुर्वेद के हिसाब से वायु बढ़ गया, नींद नहीं आएगी. सो व्हाट टू डू? तो भाई पृथ्वी और जल महाभूत को बढ़ाओ, वो बैलेंस हो जाएगा, आपको नींद आने लगेगी. मीन्स पृथ्वी और जल महाभूत मीन्स हैवी, समथिंग लिक्विड. जैसे दूध है तो हैवी भी है, जल भी है, लिया आपने, आपका बैलेंस हो जाएगा, आपको नींद ठीक से आएगी. सो इट्स अ ब्यूटीफुल साइंस. आपको बहुत सारे पैथोजेनेसिस में और इसमें उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है. बहुत आप बेसिक समझते हो एंड यू कैन डू. मेरे पास इवन मैं नहीं जानता हूँ कि इस डिसीज का नाम क्या है, देन इवन आई कैन ट्रीट दैट पेशेंट on the basis of Vata, Pitta, Kapha and what imbalance has taken place in the body. It's a really beautiful science. And आयुर्वेद के साथ हुआ क्या है, you know? आपको मालूम है कंप्यूटर जब इन्वेंट हुआ था, what was the science of the computer? The first computer on the earth, what was the size of the computer? Anybody? बहुत मुश्किल सवाल है. Anybody can tell what was the size of the computer when first it was invented? कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं. काफी बड़ा मीन्स हाँ, रूम के साइज का हो. परफेक्ट. बिल्कुल एक बड़े कमरे के साइज का था. एंड इट वॉज हैविंग वेरी बेसिक कैलकुलेशन करने की उसकी कैपेसिटी थी. व्हेन आई वॉज डूइंग माई MD, ड्यूरिंग MD वी हैव टू डू डेजर्टेशन, एंड इन द डेजर्टेशन आई वॉज डूइंग, एक मेरे मित्र के पास, सबके पास तब कंप्यूटर रहते नहीं थे, ही वॉज इन सम मल्टीनेशनल कंपनी एंड हिज कंपनी वॉज प्रोवाइडिंग हिम कंप्यूटर. उसका वो कंप्यूटर था, उसका हार्ड डिस्क का कैपेसिटी क्या था मालूम है, जिस पे मैंने काम किया था मेरे डिसर्टेशन का? इट वाज 64 MB. आई एम रिपीटिंग अगेन, 64 MB was the size of the hard disk of that computer. I am talking about 90s. Exactly 1994 I am talking about. तब भी कंप्यूटर की साइज थी 64 MB उसका हार्ड डिस्क. और उसके बाद वो इवेंट होता गया और अभी आपके पास जो मोबाइल है सिंपल, इट इज अ फार बेटर देन दोज डेज कंप्यूटर्स. अभी आपका मोबाइल कुछ भी कर सकता है, राइट? यू टॉक इन टर्म्स ऑफ द GB. MB की तो कोई बात ही नहीं करता. और अब TB पे आ गए हैं. सो अब आप सोचो कि वो टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती गई, मिनिमाइज होती गई एकदम, और सब टेक्नोलॉजी सेट हो गई. इन ओल्ड डेज इट वाज अ डोज. मुझे कॉपी पेस्ट करना था तो मुझे Ctrl+C करके Ctrl+P करना था. आप तो अभी एक उठाते हैं, ड्रैग किया, इधर डाल दिया, कॉपी हो गया, राइट? सो इट वाज द DOS, डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कमांड्स, और अब एकदम इजी है.
बट वो इजी होता गया, छोटा होता गया, बट कॉम्प्लिकेटेड भी होता गया, बट इट हैज़ बीन मेड वेरी इजी टू यू। प्रेजेंटेशन आपको बहुत आसान कर दिया और एप्लीकेशन उसकी बहुत आसान हो गई। द सेम थिंग हैज़ हैपेंड विद द आयुर्वेदा। अर्लियर वो इवॉल्व होता गया, होता गया, होता गया, होता गया, and then they made it so simplified that just asking you some symptoms, knowing your prakriti and knowing something about you, I can judge that what problem is with you. So it has been made so simplified. और इसलिए आजकल वो लोगों को इतना लगता है ऐसे कैसे हो सकता है। And but unfortunately what has happened with Ayurveda, you know, आपने किसी ने मूवी 2012 देखी थी, राइट? सो 2012 में पूरा अर्थ क्रश हो जाता है और डूब जाता है, एंड देन वॉट एवर इज देयर ऑन दोज शिप्स रिमेन्स रियलिटी, राइट? अब ये मानो कि उस शिप में वो एक लैपटॉप रह गया या आपका मोबाइल रह गया और फिर से नई दुनिया शुरू हो और उसके हाथ में वो मोबाइल आए, कैसे भी वो उसको चार्ज करने की व्यवस्था हो तो उसको लगेगा कि ये क्या है, दिस इज मिरेक्युलस, ये कैसे हो सकता है, राइट? या किसी कोई 100 साल बंदा जिया हो और उसने कभी दुनिया देखी ही ना और अचानक से आज उसको आप लैपटॉप दिखाओ तो उसको मिरेकल लगेगा। बट नाउ वो अगर टेक्नोलॉजी वैनिश हो जाए तो, कोई वो उसको एक्सप्लेन करने वाला ही ना हो तो आपको लगेगा कि कैसे आया, क्या हुआ, हाउ इट इज मेड। सेम थिंग हैज हैपेंड विद द आयुर्वेदा, बिकॉज 5000 साल से हमारे ऊपर बहुत आक्रमण होते रहे, हमारी संस्कृति को सिस्टमेटिकली मिटाने की कोशिश की गई। इन चरक संहिता टुडे देयर आर ओनली 12,000 श्लोकास जिसके ऊपर आयुर्वेद है। ओरिजिनली इन चरक संहिता देयर वर 1 लाख श्लोका, 1 लाख श्लोक थे। अब वो 1 लाख श्लोक होते तो पता नहीं हम आज कहाँ होते, पर वो आते 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 रिड्यूस होते होते उसको जलाते जलाते, आपको मालूम है ना, आपने सुना होगा कि नालंदा को जब जलाया गया 3 महीने तक वो जलती रही लाइब्रेरी, इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी। सो दैट नॉलेज वी वर हैविंग from all over the world, people were coming to our country for the knowledge. और even today's आज का जो एलोपैथी साइंस है उसका एग्जिस्टेंस इज सिंस लास्ट 200 years, डियर फ्रेंड्स। अभी सिर्फ 200 साल ही बड़ा हुआ है और वो हमसे बहुत कुछ सीख के जो भी वहाँ जो पढ़ाया जाता है उसमें से बहुत सारे, दिस इज सर्जरी है, हु इज द फादर ऑफ सर्जरी? सुश्रुत। हमारे उनके मेडिसिन में जो भी है वो बहुत सारा हमसे लिया हुआ है। सो बट अनफॉर्चुनेटली वी आर मिसिंग द लिंक, दैट इज द प्रॉब्लम, एंड सो वी आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन। एंड आप साइंटिफिक किसको कहते हैं कि हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, ये सब का आंसर मिले वही साइंटिफिक है। और हर चीज़ में वो आपको आंसर नहीं मिलेगा एज फार एज द आयुर्वेद इज कंसर्न। क्यों? क्योंकि अभी का साइंस इतना डेवलप हुआ ही नहीं है। जैसे हल्दी गरम या ठंडी? गरम पड़ेगी, आपको मालूम है, हल्दी खाएंगे तो वो गरम है ना? पपीते के बीज या पपीता गरम या ठंडा? गरम होगा, राइट? ये एवरीबडी नोज। वो कैसे आपको पता है? वो आयुर्वेद से आया है। हल्दी इज अ उष्ण वीर्य, आपके बॉडी में जाएगा वो हॉट इफेक्ट करेगा। अभी अगर आप पपीता गरम पड़ता है, अगर किसी गायनेकोलॉजिस्ट को पूछोगे यूएस में जाके, हो सकता है कि इंडियन गायनेकोलॉजिस्ट अब थोड़े से उसमें समझने लगे हों, पर आप अभी भी यूके में जाके या जापान में जाके या यूएस में जाके पूछोगे कि पपीता तो गर्म है, प्रेग्नेंट लेडी को नहीं खाना चाहिए, इट मे कॉज मिसकैरेज, विल शी बिलीव? अरे क्या बात करते हो, ये क्या गर्म पड़ता है? एक्चुअली इट्स वेरी गुड फॉर कॉन्स्टिपेशन, दिल से, राइट? दे डोंट हैव आइडिया व्हाट इज दिस हॉट एंड कोल्ड, ये हो कैसे होता है। एंड दे
till today science is not developed up to that level which can explain these all properties. And Ayurveda has explained more than 800 drugs existing on this earth, what impact it has on your body. वो अंदर जाके डाइजेशन होगा, किस स्टेज पे क्या करेगा, वी नो दैट एंड वी आर प्रैक्टिसिंग इट. सो ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं, शायद मेरा को पूरा दिन कम पड़े जो आपको आश्चर्य होंगे, तो पर मैं आज आपको थोड़ा सा बर्ड आई व्यू दूंगा. सो दैट साइंस वॉज डेवलप अप टू दैट लेवल. हाउ कम आई डोंट नो. वो कैसे वैनिश हुआ मुझे नहीं पता. देयर आर मैनी थियोरीज, बट it was a wonderful science we were having, and it is still existing with us. But हम उसको अगर हर बार कहने जाएंगे कि ये साइंटिफिकली कैसे है, तो हर बार पता नहीं. अभी का साइंस उतना डेवलप नहीं हुआ है. So what is health? Health is a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely an absence of the disease. Now this is again very tricky. अभी के साइंस में आप लेबोरेटरी में गए, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, आपका HB नॉर्मल है, ऑल योर पैरामीटर्स मीन्स WBC, RBC, एवरीथिंग इज नॉर्मल, देयर इज नो इन्फेक्शन, एंड यू आर हेल्दी, राइट. अगर ये सब है, कुछ नहीं आ रहा है सब टेस्ट में, डू यू थिंक दैट then even somebody can be healthy? और अगर ये सब पैरामीटर्स नॉर्मल हो, तब भी कोई अनहेल्दी हो, ऐसा हो सकता है? डू यू थिंक सो? हो सकता है? यस, राइट. डियर फ्रेंड्स, इट्स वेरी मच पॉसिबल एंड इट इज हैपनिंग. बहुत बार आपको लगता है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, राइट, मुझे कुछ ठीक नहीं है. आप वो लेबोरेटरी टेस्ट करवाने जाओ, सब कुछ नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू आर नॉट फीलिंग वेल. इट्स द फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड लेवल ऑफ द पैथोजेनेसिस, जहां सेल्यूलर लेवल पे गड़बड़ होना शुरू हो गया है. एक सिंपल एग्जांपल मैं दूं कि जैसे आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, सपोज आई टॉक इन द मॉडर्न टर्म्स क्योंकि आप उसको ज़्यादा समझेंगे. बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, योर इम्यूनिटी पावर इज ट्राइंग टू फाइट विद दैट इन्फेक्शन. ड्यूरिंग दैट फाइट आपके अंदर तो गृह युद्ध चल रहा है, राइट. आपका डाइजेशन, अग्नि, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, आपको भूख कम लगने लगेगी और आपको लगेगा कि कुछ गड़बड़ चल रहा है. आई एम नॉट फाइन, आई एम नॉट ईजी. बुखार नहीं है, बट आपने सबने महसूस किया होगा कि मुझे फीवरिश है, थोड़ा सा गर्म लग रहा है अंदर से. व्हाई? बिकॉज दैट वॉर इज गोइंग ऑन इन योर बॉडी एंड सो यू फील सो. बट इफ यू विल गो टू द लेबोरेटरी, एवरी पैरामीटर इज ओके, क्योंकि वो अभी तक वो जो लड़ाई है वो तब आपके बॉडी ने, आपके इम्यून सिस्टम ने हारी नहीं है. तो वो जो अटैक आपके ऊपर हुआ है वो हावी नहीं हो पाया और सिम्टम्स आपको नहीं आए, क्योंकि उन्होंने सब कैप्चर नहीं किया है अभी तक. सो योर नॉर्मल सिस्टम इज गोइंग ऑन, बट अंदर गड़बड़ चल रही है. सो यू आर नॉट हेल्दी. देन इफ योर इम्यून सिस्टम विंस, आप धीरे से फिर हेल्दी हो जाओगे. आपने अगर खाना, आपको भूख नहीं लग रही है तो आपने खाना छोड़ दिया या नहीं खाया, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आपने रेस्ट ले लिया, आपने आपके बॉडी को फैसिलिटेट किया. यू हेल्प योर बॉडी एंड योर बॉडी वॉन द वॉर एंड देन यू आर अगेन हेल्दी. उसके पहले आप फिट नहीं थे, यू आर नॉट हेल्दी. एंड सो WHO की जो व्याख्या है हेल्दी की, उसमें यही है कि इफ यू आर physically and mentally fit and no any disease, that means you are healthy. No, आयुर्वेद की व्याख्या है हेल्दी की, एंड विच इज वेरी परफेक्ट. वो है इक्विलिब्रियम दोष, समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते. समदोष
all the vat, pit, kaph is balanced, whatever according to your prakriti. Samadhatu means all your body tissue in normal state. Metabolism is normal. Agni is the metabolism. Metabolism is normal. Proper excretion of waste products means आपको constipation नहीं है, बाकी सब ठीक है, everything is fine. Then these are physical attributes. Pleasant of sound, prasanna atma indriya mana. You are happy from your atma. Indriya means your all senses and your mind is happy, is pleased in the pleasant state, then you are healthy. आपका फिजिकल स्टेटस सही है, बट यू आर नॉट हैप्पी. कुछ न्यूज़ ऐसे आए हैं कि अनप्लीजेंट थे बहुत, कोई डेथ हो गई या आपका कुछ गड़बड़ हो गया या जो आप नहीं सुनना चाहते थे वो सुना, एंड यू आर नॉट हैप्पी. हम यूजुअली अपने बोलचाल में कहते भी हैं, आप किसी को कहेंगे ना चल यार आज मूवी देखने जाते हैं, आपके मित्र को कहते हैं, वो कहेगा नहीं यार आज रहने दे. अरे क्या प्रॉब्लम है, मज़ा नहीं आ रहा है. स्वस्थ નથી, स्वस्थ નથી. स्वस्थ means स्व, yourself, and stha means you are in yourself. आप अपने में नहीं हैं, आप शोकातुर है या आप स्ट्रेस्ड हैं, आपको कुछ और फिजिकल इशू है, not with the balance, mental and physical. That means you are not healthy. So that is the complete definition of the health. Now WHO has a proceed to adapt that definition. So there is a unique concept of the Prakriti. I am talking since long. What is the Prakriti? तो ये जो वात पित्त कफ तीन में जो बांटा गया दो शरीर के एट्रीब्यूट्स को, आपके जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स को, इट इज योर जीनोटाइप एंड फिनोटाइप्स. एंड 7 टाइप्स ऑफ प्रकृति: वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, पित्त कफज, वात कफज एंड त्रिदोषज, all 3. Usually pure vata, pure pitta and pure kapha is very difficult to find. Mostly vat pit, pit kaph and vat kapha you will find, and tridoshas you will find. अगर आप अपनी प्रकृति जानते हैं, अभी अभी आपने शायद बहुत सारा सुना होगा कि देश का प्रकृति परीक्षण अभियान पीएम ने इनिशिएट किया था, और कहीं कोई आप तक पहुंचा भी हो आपकी प्रकृति करने, आई डोंट नो. एंड there are many tools online to do your prakriti, to know your prakriti. Actually it is important, and my dear friends, if you have access, once you आपको एक बार अपनी प्रकृति परीक्षण करवाना चाहिए. It will give you insight कि आपका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आपको क्या अच्छा लगेगा, कि आपको क्या खाना चाहिए, आपको क्या नहीं खाएंगे तो अच्छा है, एंड आपको क्या हार्म करेगा. And even you can know your limitations and you can know your strength. जैसे मैं कफ प्रकृति की बात करता हूँ. कफ प्रकृति जैसे मैंने कहा इज मेड फ्रॉम जल एंड पृथ्वी. जल एंड पृथ्वी का आप नेचर देखो, उस हिसाब से उसको करो कंपेयर. कफ प्रकृति वाला बंदा यूजुअली पढ़ते ही सो जाएगा, 8 से 9 घंटा सोएगा, उसको हिलाओगे नहीं तब तक वो उठेगा नहीं, उसको नींद के लिए पूछना ही नहीं पड़ता, कभी भी वो सोने को तैयार. और अगर उसको 8 घंटा सोने नहीं दिया तो ही विल नॉट इन द मूड. अच्छा, कफ प्रकृति वाला बंदा है तो वैसे सौम्य होगा, शांत होगा, थोड़ा सा हैफ्टी होगा, बॉडी थोड़ा सा बरावदार होगा, एंड उसको जल्दी से गुस्सा नहीं आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा पिंच करना पड़ेगा, बहुत करोगे तब गुस्सा करेगा. बट द प्रॉब्लम विद द कफ प्रकृतिज, उसको अगर आपने जल्दी गुस्सा नहीं करता, पर अगर आपने उसको गुस्सा कर दिया और आपने उसको बहुत एक गुस्सा दिला दिया, वो एकदम बरस जाएगा, एंड ही विल नेवर फॉरगेट. उसके एंड तक आपने कभी उसको परेशान किया है और उसको पसंद नहीं आया,
वो 25 साल के बाद भी वो भूलेगा नहीं, और वो 25 साल के बाद भी ही विल ट्राई टू टेक रिवेंज, या आपको उसका वो करने की कोशिश करेगा। दैट इज कफ प्रकृति। पित्त प्रकृति वाला बंदा है शॉर्ट टेम्पर, तुरंत गुस्सा हो जाएगा, फ्लैट जैसे कुछ हुआ, एंड वो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, गुस्सा भी जल्दी हो जाएगा पर उसके बाद शांत भी जल्दी हो जाएगा। ही इज अ काइंड ऑफ पर्सन, कफ प्रकृति का एट्रीब्यूट यह है कि वो समझने में देर करेगा, पर एक बार समझ गया जबरदस्त कॉन्सेप्ट समझेगा और आपको समझाएगी भी जबरदस्त, और उसको याद रहेगा लंबे समय तक। पित्त वाला है तुरंत समझेगा, इमीडिएट, पर और वो जैसे कुछ लोग होते हैं ना, एग्जाम में आपने देखे होंगे कि एग्जाम के 4 दिन पहले वो पढ़ने बैठता है, रट्टा मारता है, छाप के आता है पूरा। दैट इज कफ प्रकृति पर्सन। तुरंत याद रह जाता है, फिर भूल भी जाता है उसको। वो छाप के आया, वाइवा खत्म हो गया, 25 दिन बाद पूछो वो क्या था, अच्छा मैंने लिखा है, ही विल से लाइक दैट, क्योंकि वो भूल चुका है तब तक। पित्त प्रकृति वाला मेधावी कहते हैं उसको, पर वो इमीडिएट पकड़ता है और भूल भी तुरंत जाता है। और वात प्रकृति वाला पर्सन लीन थीन होगा, और कभी जिस बंदे को आप देखो कि उसको एक जगह ध्यान लगता ही नहीं है, 2 मिनट में इधर बैठा, वायु कैसा रहता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, है ना, तो बड़ा चंचल, कहीं भी किसी भी चीज में फोकस नहीं कर पाता। पर बहुत एंथ्यू, आप कुछ भी नई बात करो, हाँ चलो, उसको पता है नहीं पता है कुछ नहीं, वो दौड़ने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है। नींद नहीं आती, वो कहता है यार मैं 4 घंटे सोया, बहुत हो गया, मुझे नींद ही नहीं आती, रात भर जागता रहता है, वो लेट सुबह जाके सोता है। सो दीज आर द एट्रीब्यूट्स। अब वात प्रकृति वाला पेशेंट कितना भी घी खा ले, कितना भी दही खा ले और सब खा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कि उसको जरूरी है, वो बैलेंस करेगा। उसके बॉडी में ड्राइनेस इज मोर, वायु इज अबाउट द ड्राइनेस इज मोर। बट वहीं अगर कफ प्रकृति वाला बहुत घी खा लिया, बहुत दही खा लिया, उसको कॉमन कोल्ड हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगेंगे। पित्त प्रकृति वाला पेशेंट, कुछ लोग आप देखते हैं कि भाई 4 मिर्ची खा जाए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, और एक बंदा 1 मिर्ची खा जाए खड़ा हो जाए। व्हाई दिस हैपन, है ना? 1 मिर्ची खाने में किसी को दिक्कत हो जाती है कि यार बहुत तीखा है, और किसी को 4 मिर्ची उसमें पड़ी है, कोई इश्यू नहीं है। कफ प्रकृति वाला बंदा है, वो अगर खाता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं मिर्ची पर। अगर पित्त प्रकृति का बंदा है एंड ही हैज अ स्पाइसी फूड, देन देयर विल बी इश्यू, ही कैन नॉट टॉलरेट, बिकॉज हॉट। बहुत सारे लोगों को समर में थोड़ा सा भी गर्मी हुआ, दे कैन नॉट टॉलरेट, तुरंत पसीना होने लगेगा। ही इज अ पित्त काइंड ऑफ पर्सन। थोड़ी सी ठंडी बड़ी ठंड लगने लगती है, ही इज अ कफ काइंड ऑफ पर्सन, वाता काइंड ऑफ पर्सन। सो दिस ऑल आर एट्रीब्यूट्स। आप प्रकृति परीक्षण करवाना चाहिए, कभी हो सका तो आई विल टॉक, आपका सबका मास में भी हो सके ऐसा करेंगे। एंड वी गिव द डूज एंड डोंट्स प्रकृति वाइज, आपको ये शूट करेगा, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, आपके लिए ये बेहतर है, बिकॉज योर जीनोटाइप इज लाइक दैट। आपका बॉडी कंस्टिट्यूशन ऐसा है, आप जिसको समझते हैं तासीर, है ना, आपकी तासीर ऐसी है। एंड सो इफ यू नो दैट, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर योर करियर इवन। वात प्रकृति वाला पर्सन कैन बी अ वेरी गुड पेन मीन्स आर्टिस्ट। कोई भी आर्ट में जाना है ना, वात प्रकृति है, ही कैन बी अ वेरी गुड आर्टिस्ट। पर कोई ऐसा काम करना है कि फोकस होके करना है, एक ही जगह चिपके रहना है, जैसे पायलट बनना है, 8 घंटे बैठ के वहाँ, एक ही यूएस की फ्लाइट है तो 16 घंटे बैठे रहना पड़ेगा। कफ प्रकृति पर्सन इज देयर, विल बी द बेस्ट पर्सन। जो रिसर्चर है, तो रिसर्चर में पित्त एंड कफ पर्सन विल बी द बेस्ट पर्सन, क्योंकि उसमें फोकस रह के लंबे समय तक रहना है। सो इफ यू आर अ कफ और पित्त कफ, यू आर अ वेरी गुड रिसर्चर।
लाइकवाइज इफ यू टीचर है तो कफ प्रकृति का बंदा है तो वो एज अ टीचर इतना सक्सेस नहीं होगा बिकॉज ही इज नॉट आउटस्पोकन, तुरंत से आगे नहीं आएगा, वो थोड़ा सा स्लगिश है. बट पित्त एंड वात वाला बंदा टीचर है तो ही विल बी द बेस्ट टीचर बिकॉज तुरंत पढ़ाने को रेडी है, उसको एक्सप्रेशन करने में इंटरेस्ट है, इज मोर एक्सप्रेसिव, सो he can be a good leader. So all these attributes is very important and it is known by your prakriti. और आप प्रकृति जानते हैं तो आप बहुत कुछ आपके शरीर के बारे में जान सकते हैं. Then Ayurveda has described about the some code of conducts. It's not only about the diet and all those things. वो सब तो है ही है. कौन हेल्दी रह सकता है? इफ यू वांट टू बी हेल्दी फॉर एवर, क्या करना पड़ेगा? नित्यम हिताहार विहार सेवी, समीक्षकारी, विषयेषु असक्त, दाता सम, सत्यपर, क्षमावान, आप्तोप सेवी. नित्य हिताहार विहार सेवी. What is good for you and not good for you, if you know and you eat accordingly, वो उसको कभी डिसीज नहीं होगा. आहार एंड विहार. आहार मीन्स डाइट एंड विहार मीन्स वॉट एवर यू डू, एक्सरसाइज और स्लीप और वॉट एवर यू डू एक्सेप्ट डाइट इज अ विहार. सो इफ यू डू अकॉर्डिंग टू योर प्रकृति, you will never get disease. But only diet and do's and don'ts won't keep you undiseased or healthy. You should be samikshakari. Samiksha. You should always assess what is going around you. आपके आसपास क्या चल रहा है वो हमेशा आपको एसेस करना चाहिए, उसको समझना चाहिए और उसमें से आपके लिए हितकारी क्या है. जैसे अभी HMPV वायरस की बात आई तो भाई समीक्षाकारी बंदा होगा जो एसेस करेगा, यार ठीक है इतना इन्फेक्शियस नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, बट वाई अननेसेसरी आई शुड एक्सपोज टू ऑल दोज थिंग्स. बहुत क्राउड में नहीं जाऊंगा, बहुत ठंडा नहीं खाऊंगा, रात को जागूंगा नहीं बहुत, तो कफ नहीं होगा, तो हो सकता है कि मुझे ये प्रॉब्लम ना हो. सो दैट इज नॉन एज समीक्षाकारी. हर जगह से बचेगा वो. Then विषयेषु असक्त. विषय मीन्स सब्जेक्ट्स, ऑल द सब्जेक्ट्स. आपका डाइट, आपके जो भी लाइकिंग डिसलाइकिंग है उसमें असक्त. असक्त मीन्स नॉट अटैच्ड, डिटैच. आप किसी भी चीज में डिटैच रहेंगे. आपको बहुत पसंद है राइट, पिज़्ज़ा खाना बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है पिज़्ज़ा. बट इफ आई हैव अ सेंस कि बहुत बार बार नहीं खाना चाहिए, या मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मेरा डाइजेशन ठीक नहीं है, या अभी बहुत सर्दी है, कफ मुझे हो रहा है, थोड़ा सा गले में खराश है, मैं ये चीज़ वीज़ खाऊंगा मुझे कफ हो जाएगा, मुझे नहीं खाना चाहिए, मैदा है मुझे नहीं खाना चाहिए. इफ़ यू नो दैट, आपका डिटैचमेंट है, आपके जो सेंसिस है उससे ड्राइव नहीं हो रहे हैं आप, देन यू विल नेवर गेट डिसीज. देन दाता मीन्स जेनरस. आपके पास जो भी है दीजिए, हेल्प अदर्स. देन सम, ऑलवेज बैलेंस. कभी भी किसी चीज में बहुत एक्साइटेड नहीं, बहुत डूब भी नहीं जाएगा, डिप्रेस्ड भी नहीं. क्षमावान, फॉरगिवनेस. व्हेन यू फॉरगिव समथिंग, इट इज नॉट फॉर अदर्स, इट इज फॉर यू. आपने किसी चीज को माफ कर दिया, मतलब आपने अपने दिमाग से निकाल दिया, खत्म, भूल जाओ भाई, आगे चलो. एंड आप्तोप से भी वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे वहाँ गुरुओं के पैर छूना, बड़े लोगों के पैर छूना, फ्रॉम वेयर इट हैज कम. आप्त. आप्त मीन्स योर टीचर्स. आप जिसको बुजुर्ग कहते हैं, वडील जो हम गुजराती में बोलते हैं, है ना, जो आपके जिनको आप रिस्पेक्ट करते हो एज इन द फॉर्म ऑफ द नॉलेज और एज और एक्सपीरियंस, उनको अगर आप मिलते रहोगे, उनके एक्सपीरियंस को लेते रहोगे और समझते रहोगे, एंड वॉट एवर योर प्रॉब्लम्स, इफ यू कंटिन्यू टू डिस्कस विद दैम, यू विल गेट वेरी गुड नॉलेज एंड
आपको डिसीज नहीं होंगे। ये शायद एट योर एज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, बट दिस इज इट्स ये मैं ये कहूँगा दिस इज द नेक्टर ऑफ द लाइफ इफ समबडी अंडरस्टैंड्स एंड फॉलोज। कभी भी नॉट ओनली डिसीज, कोई इश्यू लाइफ में नहीं होंगे। देन आयुर्वेदा हैज कंसिडर द 3 pillars of your life. These are the 3 pillars on which your life, your health is there. It's ahar, nidra and brahmacharya. Have you heard about Brian Johnson? Nice. कितने लोगों ने सुना है ब्रायन जॉनसन के बारे में? 2-3 लोग हैं। आई एम हैप्पी एटलीस्ट। ब्रायन जॉनसन इज अ मिलियनर इन द यूएस जो कोशिश कर रहा है कि मैं 100 साल जीऊं और उससे भी ज़्यादा जीऊं और वो भी हेल्दी वे में। ही हैज़ ऑल द प्रॉपर्टी। उसने एक डॉक्टर को रखा है, साइंटिस्ट को रखा है, एक डाइटिशियन, एक हेल्थ कंसल्टेंट, एवरीथिंग, पूरी टीम है। सुबह 4:30 को उठता है वो, एंड हिज लास्ट मील ही टेक्स अराउंड 11-11:30। 11:30 उसका अंतिम भोजन होता है दिन में। रात को 8:30 को सो जाता है। वो आयुर्वेद नहीं पढ़ा, अभी उसको आयुर्वेद के बारे में किसी ने शायद नहीं बताया, बट ही इज फॉलोइंग आयुर्वेद अननोइंगली। उसको जो एडवाइस दी गई कि भाई अगर तुमको लंबा जीना है तो ये करना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज, नित्य व्यायाम। ही इज टेकिंग लॉट ऑफ हेल्थ सप्लीमेंट्स जो कि नहीं लेने चाहिए, बट ही इज टेकिंग वेजिटेरियन डाइट एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड 8:30 वो सो जाता है तो सो जाता है और 8 घंटे सोता है। एंड ही इज पुटिंग ऑल द एफर्ट्स टू कीप हिमसेल्फ हेल्दी। और वो कहता है कि मुझे 100 साल जीना है और फिट होके जीना है। एंड ही इज फॉलोइंग दिस 3 pillars: healthy diet, proper sleep and proper sex. Brahmacharya means does not means abstinence of the sex, means abstinence. सेक्स नहीं करना वो ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य मीन्स हैविंग अ प्रॉपर सेक्स। हम डाइट के बारे में बहुत बात करते हैं, हेल्दी डाइट वी डिस्कस अ लॉट। चलो वो तो ऑब्वियसली अगर आपने खाना गड़बड़ खाया और लंबे समय तक गड़बड़ खाया तो गड़बड़ होगी, हम जानते हैं। स्लीप, अभी भी हम अवेयर नहीं हैं, वी इग्नोर इट। बट डियर फ्रेंड्स, डोंट प्ले विथ इट। 2 दिन या 3 दिन प्रजागरण हुआ, चौथे दिन आपका सारा गड़बड़ हो जाएगा एंड यू विल बी इन द ट्रबल। अभी यंग एज है, थोड़ा और गए तो और दिक्कत होगी, और अभी से अगर उसको मेंटेन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है। एक एग्जांपल मैं सभी पेशेंट्स को देता हूं। यूजुअली आफ्टर 30, अभी आपको मैं आप में से ज़्यादा लोगों को पूछूंगा, आप कहेंगे मैं 2 दिन जग दिया तो कुछ नहीं, क्या प्रॉब्लम है इसमें, मैं तो रात रात पर जगता हूँ, फिर दूसरे दिन काम करता हूँ, तीसरे दिन भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डियर फ्रेंड्स, नई गाड़ी आप खरीदो और उसको कैसे भी चलाओ 1 साल, पर सर्विस न करवाओ तो 1 साल आपने गाड़ी नहीं खरीदी, कुछ भी गाड़ी या बाइक या स्कूटर, 1 साल आपने जबरदस्त चलाई, जहां भी चलाना है, जैसे मर्जी चलाना है चलाई, ऑयल भी डाला नहीं डाला, कुछ भी किया नहीं किया, 1 साल, और सर्विस ही नहीं करवाया, क्या होगा? उसके बाद कुछ नहीं होगा कि कुछ होगा? क्या होगा? वो गड़बड़ करना शुरू करेगी। ठीक है, कभी भी कहीं भी बंद हो जाएगा, स्टार्टिंग ट्रबल देगी, ये होगा वो होगा, देयर विल बी मैनी इश्यूज। फिर आप उसको सर्विस में दे आते हो, फिर सर्विस वाला कहता है कि साहब आपने तो बहुत टाइम से सर्विस नहीं करवाया, अब ये पार्ट इसका डैमेज हो गया, यू हैव टू चेंज इट। सो वो आप पार्ट चेंज कर देगा और आपको करके देगा और फिर वो गाड़ी चलने लगेगी। बट इन योर बॉडी यू डोंट हैव अ फैसिलिटी वो पार्ट चेंज करने की। 30-35 साल तक आप बॉडी को कैसे भी फेंकोगे, कुछ भी खाओगे, सोओगे नहीं सोओगे, एक्सरसाइज करोगे नहीं करोगे, देयर विल बी नो इश्यू।
क्योंकि आपकी नई गाड़ी है भाई, उसको सर्विसिंग किया, केयर लिया, नहीं लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो चलती रहेगी, क्योंकि अभी आपका सेल ग्रोथ हो रहा है, आप डाउन पैराबोला पे नहीं आए, नई गाड़ी है, सर्विस नहीं करवाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। 35 साल के बाद शुरू होगा, मुझे बड़ी एसिडिटी हो रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे चलने में जरा दिक्कत हो रही है, मेरे कमर में दर्द हो रहा है, मुझे भूख नहीं लग रही है, मेरे जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा दौड़ता हूँ तो दिक्कत हो जाती है, मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो सांस फूल जाती है। ऑल दिस कंप्लेंट्स विल स्टार्ट। क्यों? क्योंकि जब आपको उसका वो नई थी तब उसने आपकी सर्विसिंग नहीं करवाई, न टेक केयर किया, और वहाँ तो आपके पास फैसिलिटी है कि पार्ट्स बदल गए, यहाँ आपके पास फैसिलिटी नहीं है पार्ट्स बदल जाए, एंड देन यू हैव टू डील विद दैट फॉर द लाइफ टाइम। या तो आपको डायबिटीज घुस जाएगा, या हाइपरटेंशन घुस जाएगा, या थायराइड घुस जाएगा, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एनी ऑफ द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। और आजकल आप सुन रहे हैं 28 साल का लड़का हार्ट अटैक से चला गया, 20 साल का लड़का गरबा करता था हार्ट अटैक से चला गया। व्हाई दिस इज हैपनिंग? मैंने जो कहा ना, यही कारण है। आप जब करते हो, यू आर यंग, आपको पता नहीं चलता, बट अल्टीमेटली इट टेक्स टॉल बिकॉज इट्स बॉडी, इट्स नॉट अ मशीन, सो यू हैव टू मेंटेन इट। ईश्वर ने आपको बहुत अच्छा मशीन दिया है, पर वो आपको वार्न भी करता है, पर जैसे मैंने कहा ना, यू डोंट लिसन टू योर इंटेलेक्ट, देन देयर इज अ इशू। अगर आप सुनोगे कि यार ये गड़बड़ है, आपकी बॉडी कहेगी कि ये सही नहीं कर रहे हो, रुक जा भाई रुक जा, लिसन टू दैट एंड वो करो। तो मैं 3 पिलर्स की बात कर रहा था। सो प्रॉपर स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिन में नहीं सोना है, रात को सोना है, हो सके उतना टाइम मेंटेन करिए, और एटलीस्ट 7 आवर्स। हमारे पीएम साहब 3 घंटा 4 घंटा सो के चला सकते हैं, वो पीएम है, वो कर सकते हैं। आपको तो एटलीस्ट 7 घंटा सोना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू गो अलॉन्ग, राइट। तीसरा इंपॉर्टेंट, ब्रह्मचर्य, एज आई वाज टॉलिंग, सेक्स। आयुर्वेद ने और हमारे संस्कृति ने उसको इतने पहले से पहचाना था। यू हैव हर्ड अबाउट द खजुराहो, राइट। खजुराहो में दे हैव डिस्क्राइब्ड ऑल वात्सायन publicly. Kama Sutra was written in the 7th century describing about the sexual life, and they were knowing how important it is having in your life. So knowing about it was not a taboo, not an issue. Our society was very open society, but vulgar society नहीं थी, open society थी। I am talking about that, है ना। हमारे वहाँ नियोग से संतान पैदा की जाती थी, हमारे वहाँ हेल्दी बेबी, हेल्दी प्रोजेनी के लिए वाजीकरण आयुर्वेद में कहा गया। सो ऑल थिंग्स वर देयर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ यू हैव हर्ड अबाउट सिगमंड फ्रॉइड यूज्ड टू से, आप जो भी करते हो, वट एवर योर एक्शन इज बेस्ड ऑन योर सेक्सुअलिटी। आपके सेक्सुअलिटी उसमें रिस्पॉन्सिबल है, आपकी जो भी एक्शन है, नोइंगली अननोइंगली। एंड सो शंकराचार्य के बारे में आपने सुना है, आदि शंकराचार्य। शंकराचार्य को सारा ज्ञान था, सारे वेद उनको कंठस्थ थे, भारत भ्रमण पूरा कर चुके थे, एंड ही वाज नोइंग ऑल द नॉलेज। और उनका डिस्कशन था मंडन मिश्र से, आचार्य मंडन मिश्र, एंड ही वाज नोन, एंड मंडन मिश्र वाज मैरिड and Shankaracharya was not married, and so he was not having an experience of the sexual life. जब ये बात आई कि उसमें विद्वत चर्चा होगी, वो कुछ पूछेंगे, you won't have any idea and you don't know that aspect of the life, so you cannot be a complete person with the complete knowledge. And then वो किसी व्यक्ति के शरीर में परकाया प्रवेश करके उन्होंने वो he experienced it and then he entered in the discussion. So without knowledge of proper sexual life, ये हमारे वहाँ टैबू है,
पर्टिकुलरली वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और स्ट्रीट यूनिवर्सिटी से सबको सेक्स के बारे में नॉलेज मिलता है, विच इज़ रॉन्ग, एंड एवरीबडी शुड learn about it systematically and should have a proper knowledge of it. So these are the three pillars. Then three base factor for the disease. मुख्य 3 कारण हैं जो आपको डिसीज होंगे। काल, अर्थ और कर्म का अतिहीन और मिथ्या योग। काल मीन्स सीजन। सीजन, ये ठंडी का सीजन है, राइट? अभी अगर ठंडी नहीं पड़ता है, इफ इट इज नॉट कोल्ड राइट नाउ, देन इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। समर में अगर गर्मी नहीं पड़ता है, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है, नॉट गुड फॉर हेल्थ। अगर इस सीजन में बारिश होता है, दैट इज अ मिथ्या योग, नॉट गुड फॉर हेल्थ। सेम वे मीन्स उन सबका आपके बॉडी पे इंपैक्ट है। देन अर्थ, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंस, आपके जो ऑल द 5 सेंसेस हैं, मीन्स शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मीन्स आप जो देखते हैं, आप खाते हैं, टेस्ट है ना, आप स्मेल करते हैं, आप टेस्ट करते हैं, वो सब 5 सेंसेस, वो अगर उसका अतियोग करते हैं, कोई चीज़ आपको टेस्टी लगी, अच्छा है, आप खाओ, थोड़ा खाओ, टेस्ट इट, बट ઉષ્ણસ કરીને ઉપનામ હતું એનું એક છે કે રંગના ચટકા હોય, કુંડા ન હોય, સાંભળ્યું છે? नहीं, वो क्या है, वो गूगल में नहीं आता ना, मोबाइल पे आता नहीं, वो पढ़ना पड़ता है, वो आजकल की जनरेशन के साथ ये प्रॉब्लम है। सो रंगना चटका होय, कुंडा नहीं, मीन्स टेस्ट आपको कोई अच्छा लगा, दैट डजंट मीन कि आप उसको ठूस ठूस के खाओ और वो ही खाओ। ठीक है भाई, आपको अगर लंबे समय तक खाते रहना है, उसको एंजॉय करते रहना है, बिकॉज यू लाइक इट, बी मॉडरेट। थोड़ा सा उसको आज खाया, परसों नरसों भी वो रहेगा, दुनिया से एक्सटिंक्ट नहीं हो जाने वाला, उसका अस्तित्व खत्म नहीं होने वाला, ना आपका होने वाला है, कल भी वो होगा, कल टेस्ट करना फिर से, बट आज ही उसको सब कर जाना, that will create an issue for all the things। हर चीज में अति नहीं करना और बिल्कुल नहीं करना, वो भी नहीं करना, बीच में रहना, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होंगे, न मेंटल न फिजिकल, इन ऑल द वे, ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ इट इम्प्लाइज। जिम जैसे चढ़ता है भूत, देख लिया किसी को कि भाई क्या 6 पैक एब्स, एंड वो जिम में गया, शुरू हो गए, वो किसी ने कहा कि भाई आपको प्रोटीन लेना चाहिए, तो वे प्रोटीन ले, डिब्बा ले आए, शुरू हो गए, हर रोज सुबह शाम जिम में लगे रहते हैं, मसल्स बनाए, फिर पता चला एक दिन कि वो हार्ट अटैक हुआ, या ये प्रॉब्लम हुआ और वो प्रॉब्लम हुआ। आपके लिए जितना जरूरी है फिट रहने के लिए, आपको वो 6 पैक एब के पैसे नहीं मिलने वाले, वो शाहरुख खान को मिलते हैं, आपको नहीं मिलेंगे। सो आपके लिए हेल्दी रहना हो के लिए जितना जरूरी है, या तो आपको अखाड़े में नहीं जाना, अखाड़े में जाना है तो यू डू इट, बट अगर वो करना नहीं है, हीरो के जैसे आप ग्राउंड में आओगे नहीं कि भाई 10 लोग आ गए अर्जुन अल्लू की जैसे कि भाई उड़ा दिया और मुझे बॉडी बनाना है, डोंट बी इन दैट इम्प्रेशन। वो वे प्रोटीन वालों का धंधा है, जिम वालों का धंधा है, आपको उसमें उलझाते हैं, बी लाइक दैट, आप उस इमेज में जीते हैं। नो, प्रोटीन नेचर में से लीजिए ना, वे प्रोटीन कैन डैमेज मैनी थिंग्स, आपकी किडनी या बहुत सारी चीजों को। सो बी केयरफुल अबाउट ऑल दिस थिंग्स। अति मत करिए, न करिए ऐसा भी नहीं, एक्सरसाइज करना चाहिए बट मॉडरेट। आपकी अर्धशक्त्या व्यायाम, आयुर्वेद ये कहता है कि आपको एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए, आपकी कैपेसिटी जो ना हो ना, फुल कैपेसिटी, उसकी आधी। मीन्स आप एक स्ट्रेच में 10 मंजिला चढ़ सकते हैं, है ना, और फिर 10 के बाद नहीं चढ़ पाओगे, तो आपको 10 कभी नहीं चढ़ने चाहिए, 5 चढ़ जाओ, रुक जाओ, 5 चढ़ो 3 दिन, चौथे दिन 7 चढ़ दिए, कैपेसिटी आपकी बढ़ी, और 3 दिन आप 7 स्टेयर्स चढ़े, फिर कैपेसिटी बढ़ाओ, और जब आपकी 20 स्टेयर की कैपेसिटी हो जाए तब आप 10 स्टेयर चढ़ो।
then you will never have a problem at middle path. And then karma, activity, is also, as I said, no hin yog means kam nahi, na ati yog, ati nahi. Ati sarvatra varjayet, everywhere access should be avoided, whatever it is, at the downside, at the upside, no access. Then you will never get diseased. Then unique concept of the Ayurveda, पंचकर्मा, ये आपने सबने सुना है, ठीक है। पंचकर्म के बारे में मैं फिर बाद में चर्चा करूंगा। देन रसायन, रसायन इज अ कॉन्सेप्ट फॉर लॉन्जिविटी, आपको लंबा कैसे जीना है, 100 साल कैसे जीना है और हेल्दी कैसे जीना है, उसके बारे में। देन वाजीकरण, इट इज एफ्रोडिसियाक, आपकी सेक्सुअल विगर कैसे बढ़ानी है, एंड हाउ टू डिलीवर हेल्दी प्रोजेनी, स्वस्थ संतान कैसे उत्पन्न करना है, इसके बारे में है वाजीकरण। देन द फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल बैलेंसिंग अप्रोच फॉर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अग्नि, मेटाबॉलिज्म। ये अग्नि का कॉन्सेप्ट अभी भी मॉडर्न साइंस नहीं समझ रहा है, हमारे वहाँ है कि भाई તમારી અગ્નિ કેવી છે, તમારું ડાયજેશન કેવું છે, ભૂખ લાગે છે કે નહીં. One should never eat unless until you feel lot of hungry. मीन्स आपकी एज में तो होता होगा, पर बहुत लोगों को नहीं भी होता होगा. यूजुअली हम क्या करते हैं, थोड़ी सी जगह हुई, ये भी थोड़ी जगह हुई या ठूस दिया, कुछ हाथ में आया, क्योंकि हम वेट करते रहते कुछ खाने का मौका मिले, है ना. नो, दैट शुड नॉट बी द वे. व्हाट शुड बी द आइडियल वे? यू शुड फील हंग्री. और हंगर किसको कहते हैं? यार अभी खाना पड़ेगा, नहीं तो मैं चल नहीं पाऊंगा, मुझे कुछ कर नहीं पाएगा, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, बंद हो गया है, आई हैव टू ईट समथिंग. भूख लगी है जोर से, एंड एट दैट टाइम यू हैव टू ईट. एंड हाउ टू ईट? Imagine the 4 compartments of your stomach. 2 compartments should be filled with the solid food, whatever it is, sabji ho, roti ho, chawal ho. 1 compartment with the liquid food, that is dal or chach or whatever it is, and 1 compartment always should be empty. This is the formula for the good digestion and to be healthy. फिर दूसरी बार भूख लगे, दूसरी बार खाओ ना, एक बार कभी भी ठूस के नहीं खाना है. एंड नेवर ईट लेट नाइट्स. जैसे मैंने अभी ब्रायन जॉनसन का आपको एग्जांपल दिया, ही इज हैविंग हिज लास्ट मील एट 11:30. आप कोई भी योगी के बारे में सुनोगे, आप सुनोगे 4 बजे के बाद वो खाना नहीं खाते, शाम को सिर्फ दूध पिएंगे. एंड दैट प्रोवाइड्स योर बॉडी टू गेट रिपेयर. रात को आप सोने जाते हो, आप बहुत हैवी खाना खा के जाते हो, What happens, you know, आपने आपके बॉडी को होमवर्क दे दिया बहुत सारा और आप चले गए रेस्ट करने, वो कैसे हो जाएगा? इट्स लाइक दैट कि आपने कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल्स ओपन कर दी एंड देन यू गिव द कमांड शट डाउन. ये कैसे शट डाउन होगा? और होगा तो फिर दूसरी बार जब चालू करोगे तो वो कंप्यूटर कहेगा इट्स इन रिपेयर मोड, आप कैसे करना चाहते हो, आता है ना मैसेज. एक्चुअली व्हेन यू ईट अ लॉट हैवी फूड लेट नाइट एंड देन यू गो टू स्लीप, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है कि ये बंदा कर क्या रहा है, मुझे रिपेयर करना है, पूरे दिन जो इसने पेट में डाला है, मैंने मुझे डाइजेस्ट करके उसके जो बाय प्रोडक्ट्स हुए हैं उसको बाहर निकालना है, वो सब सिस्टम करना है क्लीन, कल सुबह के लिए उसको तैयार करना है. वो आप टाइम ही नहीं देते उसको, हैवी होमवर्क करके सो गए देखे. ना आपकी ठीक नींद होगी, न आपको मजा आएगा, दूसरे दिन भी आपको लिथार्जी लगेगी. एंड सो ऑलवेज व्हेन यू आर हंग्री, मैंने जैसे कहा उस तरह से खाना खाओगे, यू ऑलवेज विल एंजॉय. आपके 100वें साल में भी आप बड़े प्यार से खाना खाते होंगे, सब कुछ खाओगे. और दूसरी एक चीज मैं जो सबको बताता हूं, आप जिसके भी शौकीन हो, आपको बहुत तीखा पसंद है या आपको बहुत मीठा पसंद है, तो बी मॉडरेट. आपको लाइफ टाइम के लिए कोटा मिल गया है कि आपको जिंदगी भर इतनी शुगर खानी है. अब आपने उसको 20 साल में खा ली, 25 साल में उसकी पूरी क्वांटिटी खा ली जो आपका कोटा है, 25 साल के बाद आपको डायबिटीज हो जाएगा, बंद शुगर.
हो गया खत्म, आपका कोटा पूरा हो गया। बहुत तीखा पसंद है, बहुत मिर्ची खाई, बहुत मिर्ची खाई, जब भी वो मिर्ची खाई एसिडिटी हो जाएगी, आ जाओगे मेडिसिन पे, और फिर थोड़ा सी भी तीखा नहीं खा सकते, खाओगे तो कूदोगे, लाइफ टाइम बंद, खत्म। सो वॉट एवर इज गिवन टू यू, वो कोटा मॉडरेटली यूज करो, एंजॉय फॉर द लाइफ टाइम। एंड देयर द सुरेश दलाल कम रंगनाथ, चटका होए कूंडा नहीं, राइट। एंड देन द कॉन्सेप्ट ऑफ द आमा। आमा इज अ, आपने सबने सुना होगा आमा, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मैंगो, राइट। आम मीन्स आपके बॉडी में जो मीडियोकर प्रोडक्ट्स जनरेट होती है, आप साइंस पढ़ के आए हैं वो मुझे बता सकते हैं कि अगर आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, आपने चावल खाया, तो व्हाट अल्टीमेटली विल बी कन्वर्टेड इन योर बॉडी, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू, आपने कार्बोहाइड्रेट लिया तो डाइजेशन के बाद वो किस में कन्वर्ट होगा, एनीबडी? या किस में होगा? ग्लूकोज। बड़ी गड़बड़ है यार। अगर आपने प्रोटीन लिया तो किस में होगा? एमिनो एसिड्स, राइट। सो अगर आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, चावल खाया, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होना चाहिए। अगर ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, योर सेल्स नोज हाउ टू एब्जॉर्ब इट एंड हाउ टू, बाकी जो बचा उसको बाहर कैसे फेंकना है। देयर इज अ सिस्टम, देयर इज अ लॉक एंड की सिस्टम सेल्स में। जैसे ग्लूकोज है, उसकी एक की होगी और सेल के पास उसका होगा, वहां वो फिट होगा तभी वो एब्जॉर्ब करेगा। देयर इज अ सिस्टम। तो अगर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हुआ, मेटाबॉलिज्म आपका स्लो है, तो आपका कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इन द मीडियोकर सब्सटेंस, आपके बॉडी में घूमेगा एंड विल क्रिएट अ प्रॉब्लम दैट इज नोन एज आमा, राइट। सो इट इज अ यूनिक कॉन्सेप्ट एंड यू हैव टू इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म, देन दैट विल बी क्लियर्ड। सो मैं डिसीज का कैसे होता है उसमें मैं नहीं जाता। Then there are a type of treatment in Ayurveda, that is Yukti Vipashraya, that is with Yukti means ideas. Then the Sattva-Avjay and Sattva-Avjay and Daiva Vipashraya. Daiva Vipashraya means spiritual practices. This is Yukti Vipashraya. Two types जो मैंने पहले बताया कि आपके दोष इतने बढ़ गए हैं तो फिर उसको सप्रेस करने की कोशिश मत करो, हद से ज्यादा बढ़ गए हो, निकल जाने दो बाहर, जो ज्यादा है उसको निकालो और फिर बाकी जो बच गया उसको ठीक करके सेट कर दो। ये एग्जाम्पल है कि भाई जैसे वो पेड़ अब इतना ही नीचे हो गया कि सपोर्ट से भी नहीं रहेगा तो उखाड़ दो भाई, खत्म करो। एंड अगर ऐसा है कि उसको काट के सप्रेस करके चल सकता है तो ऐसे करो। तो ट्रीटमेंट देके काम चलता है तो करो, नहीं चलता है तो पंचकर्म करो। मीन्स आपका कफ बढ़ गया है तो वमन करो, उल्टी करवा के बाहर निकालो। अगर पित्त बढ़ गया है विरेचन करवाओ, मोशंस करके बाहर निकालो। वात बढ़ गया है तो वी गिव एनिमा, दैट इज नोन एज अ पंचकर्म, एंड दैट इज वो बढ़े हुए दोषों के लिए है। जैसे आप कोई पानी लोगे, एक तालाब से पानी लिया, ये नदी बह रही है, पानी लिया, एक बोतल में रख के रख दो, अभी तो अपेरेंटली इट लुक्स क्लियर टू यू। थोड़े दिन रखोगे या 5-6 घंटा रहोगे, देयर इज अ सेडिमेंटेशन, नीचे कुछ बैठा हुआ दिखेगा। ऐसे बॉडी में भी टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते जाते हैं और उनको पीरियोडिकली निकालना जरूरी है। अभी एक वीडियो अगर किसी ने सुना होगा कि आज तक का कॉन्क्लेव हो रहा था एंड द एंकर आस्क्ड, देयर वाज नरेश त्रेहान एंड बिलियरियन कॉलिक साइंसेस के डायरेक्टर, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बोथ वर देयर, वेरी रिनाउंड डॉक्टर। नरेश त्रेहान का नाम सुना है? मेदांता हॉस्पिटल्स का नाम सुना है? नहीं। आई थिंक यू नीड टू इंक्रीज योर जीके, मुझे ऐसा लग रहा है आज की टॉक के बाद। इतने पुअर जीके में काम नहीं चलने वाला। नरेश त्रेहान मेदांता आज रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट, बहुत अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट है, मेदांता हॉस्पिटल चेन है। और हमारे बहुत सारे वीआईपीज जो बीमार होते हैं, आप सुनते होंगे मेदांता में एडमिट हुए,
राइट। सो आज तक का जो चल रहा था, एंकर ने मेदांता के हॉस्पिटल के जो हेड हैं नरेश त्रेहान, उनसे पूछा कि अभी जो माइक टाइसन जिसकी फाइट हुई थी वो तो पता होगा, हुई थी, हाँ वो पता है। तो माइक टाइसन इज टेकिंग अ प्लेटलेट्स फॉर लॉन्जिविटी, लंबा जीने के लिए प्लेटलेट्स लेता है, तो वो सही है कि नहीं है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा। सो व्हाट वाज द नरेश त्रेहान्स आंसर, यू नो, मैं इन सब चीजों में नहीं मानता, एंड आई बिलीव दैट पंचकर्म इज द बेस्ट वे फॉर द लॉन्जिविटी। अगर आपको लंबा जीना है तो अगर आप पंचकर्म से शोधन करवाते हो पीरियोडिकली, देन यू कैन हैव अ लॉन्गर लाइफ। वी हैव अ ब्यूटीफुल वे जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। सो देयर आर 5 कर्म: वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य एंड रक्त मोक्षण। वमन मीन्स व्हेन देयर इज अ कफ इज इंक्रीज, यूजुअली इन द वसंत ऋतु। अभी एक्यूमुलेट होता है ठंडी में, वसंत ऋतु स्प्रिंग में वो बाहर आएगा, इसलिए हम चना और वो जो पॉपकॉर्न खाते हैं ना, दानी, होली में वो क्यों खाते हैं? क्योंकि कफ बढ़ा है, उसको ठीक करने के लिए। इट इज इन अवर ट्रेडिशन। सो उसमें हम वमन करवा के कफ को बाहर निकालते हैं। आपको थ्रू आउट द ईयर कफ के डिसीज नहीं होंगे और आपकी लाइफ बढ़ेगी। देन इन शरद ऋतु हम दूध पोहा खाते हैं। क्यों खाते हैं? शरद पूर्णिमा पे आपके बॉडी में नेचुरली पित्त बढ़ता है उस समय, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट ऐसा है, तो वो पित्त बढ़ा हुआ है, उसका प्रॉब्लम आपको ना हो, इसलिए उस समय दूध पोहा खाते हैं और हम उस समय विरेचन करवाते हैं जिससे पित्त निकल जाए। और वर्षा ऋतु में हम बस्ती करवाते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमा। इट्स अ क्लींजिंग प्रोसेस, इट्स अ बायो क्लींजिंग, इट्स अ वेरी साइंटिफिक। किसी दिन पंचकर्म पूरा कैसे काम करता है वो हम बात करेंगे तो आपको सरप्राइज होगा। So it's about that detoxification. It's about the microbiome. आपको मालूम है आपके पूरे शरीर के फंक्शन माइक्रोबायोम से होते हैं, पता है? व्हाट इज द माइक्रोबायोम, ये पता है? एटलीस्ट बायोटेक्नोलॉजी में जो आए हैं उनको तो पता होना चाहिए। यू नो, आपके शरीर के 1 स्क्वायर इंच पे कितने बैक्टीरिया हैं? यू हैव आइडिया? 1 square inch of your skin, how many bacteria are there? Do you have idea? No. More than 400 varieties of bacteria are there in 1 square inch of your body. And all your functions, including digestion, आप सोते हैं, आप पोटी जाते हैं, सब कुछ जो भी है, everything is being regulated by the bacteria. And very soon the antibiotic word will be obsolete. खत्म हो जाएगा। आपको कुछ गड़बड़ हुई है, ये बैक्टीरिया ले लो, आप ठीक हो जाओगे, वो आने वाला है, और आयुर्वेद तो ऑलरेडी वो कर ही रहा है। सो इट इज ऑल, आपका पूरा बॉडी बैक्टीरिया से चलता है, माइक्रोबायोम से। एवरी फंक्शन, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, वो सब मिलके माइक्रोबायोम वर्ड बनता है। एंड सो फॉर टू कंट्रोल दैट माइक्रोबायोम्स एंड ऑल दोज थिंग्स, पंचकर्म इज द बेस्ट थिंग एंड इट्स अ फ्यूचर साइंस। आयुर्वेद पहले से जानता है। These are the studies. I am not going in that. Then रसायन ट्रीटमेंट इज फॉर लॉन्जिविटी। मैं एक ही एग्जाम्पल दूंगा। देयर वॉज वन स्टडी बाय सुभाष लखोटिया, आप पेपर भी पढ़ सकते हो। ड्रोसोफिला वन फ्लाई, एक प्रकार की मक्खी है ड्रोसोफिला, एंड इट हैज अ लाइफ स्पान ऑफ 45 डेज, 45 दिन वो जीती है। उस ड्रोसोफिला को आम्ल की रसायन, ये जो आपका आंवला है ना जिससे च्यवनप्राश बनता है, वो दिया गया, और वो पता लगाया, उसको जब दिया गया तो उसका लाइफ स्पान हो गया 70 to 75 डेज। जो 45 दिन में मरती थी मक्खी, वो 70 से 75 डेज जी गई विद दैट आम्ल की रसायन। सो आप च्यवनप्राश खाओगे, लंबा जियोगे। सो दैट इज अबाउट रसायन। रसायन इज ऑल्सो अगेन अ होल बिग टॉपिक, पर उससे आपके पूरे बॉडी टिश्यू रिन्यू हो जाते हैं और एनर्जाइज हो जाते हैं। इट्स नॉट अ केमिकल, इट्स अ रसायन फॉर लॉन्जिविटी। सो इट इज सेल प्लोरिफरेटर, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट, इम्यूनोमॉड्यूलेशन, एंटीऑक्सीडेंट, मेटाबॉलिक करेक्टर, जेरेट्रिक मेडिसिन एंड फंक्शनल कैपेसिटी एनहांसर।
आपको ब्रेन से काम लेना है, मध्य रसायन लो, गुड़ूची खाओ, गिलोय खाओ, ब्राह्मी खाओ, दैट इज द मध्य रसायन, योर इंटेलेक्ट विल गो हाई. सो देर आर इवन घी, गाय का घी गिव्स यू वेरी गुड इंटेलेक्ट. सो जो भी इंटेलेक्चुअल काम करता है उसको गाय का घी खाना चाहिए. सो देन देर इज आचार रसायन, है ना. वो क्या क्या करता है, मैं आई विल गो वेरी ब्रीफ, कि एजिंग रोकता है, लाइफ स्पैन बढ़ाता है, इंटेलिजेंस बढ़ाता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, एंड डिसीज को होने से रोकता है. देन देर इज आचार रसायन, आपका बिहेवियर कंडक्ट आयुर्वेद ने बताया कि आप कैसे बिहेव करना चाहिए सोसाइटी में. दैट ऑल्सो दे हैव थॉट. मैं इसमें बहुत नहीं जाऊंगा. यू शुड बी अ ट्रूथफुल एंड स्पोकन, फ्री फ्रॉम एंगर, then not in improper, devoid of improper sex and use of alcohol, not indulging in violence, preaching peace and speaking pleasantly, बाकी सब है ना. early to rise, early to bed, वो make you wise, वो ब्रिटिश वालों ने बाद में कहा, 5000 साल पहले आयुर्वेद ने कहा. then should be compassionate and habitual of taking ghee, milk and wholesome diet. घी से भागो मत, नॉट वेजिटेबल, प्योर काउ घी. देन एक्विटेंस रिगार्डिंग हिज कंट्री एंड सीजन, फ्री फ्रॉम ईगो, शुड बी बैलेंस इन हिज डिसीजन, शुड हैव अ गुड कंडक्ट, शुड नॉट बी नैरो माइंडेड एंड शुड हैव सेल्फ कंट्रोल. दिस ऑल आर गुड फॉर देयर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, एंड दिस इज रसायन. इफ यू फॉलो दिस यू विल लिव लॉन्ग. Then there are some fallacies, we will go in the short because अब मैं 5 मिनट ऊपर चला गया हूं. So there are common misunderstanding. उसके बाद कोई क्लास नहीं है ना. हाँ. So there are common misunderstanding. Ayurveda is a mystical science. आपको लगता है ये फला वैद्य है, नाड़ी पकड़ लिया और आपको बता देगा कल आपने टमाटर खाया था. No, it's not like that. Pulse diagnosis is about आपका वात या पीत या कफ बड़ा है तो आई कैन से कि थोड़ा सा इम्बैलेंस है आपका वात का, तो मैं वात के एट्रीब्यूट्स और आपकी प्रकृति जानता हूं तो आई कैन से कि थोड़ा सा आपके ये गड़बड़ हुआ है एंड यू शुड टेक केयर ऑफ दैट. पर वो ज्योतिष जैसा है. कुछ कुछ नाड़ी वैद्य, कुछ कुछ वैद्य जो हर चीज में हर साइंस में कुछ मीडियोकर लोग रहते हैं या कुछ उस साइंस को एक्सप्लॉइट करने वाले रहते हैं और वो ये सब गिमिक्स करते हैं. जैसे ज्योतिष एक साइंस है पर उसमें गिमिक्स करने वाले बहुत हैं. जैसे आपको कोई ज्योतिष आके कहे, आपकी कुंडली देखा और आपका चेहरा देख के कहा या आपकी हथेली देखी और कहा, आपको आपकी लाइफ में कोई समझ नहीं पाता, आपकी बात को समझते नहीं है ना. आपको हमेशा लोग थोड़ा मिसअंडरस्टैंड करते हैं. आप दिल से बहुत अच्छे हो पर लोगों को ये समझ में नहीं आता. अभी मैं कभी भी किसी भी कहूँ कोई मना नहीं करेगा, हाँ बात सही है, मेरे को कोई समझता नहीं है. मैं कितना भी कहती हूँ अच्छी हूँ पर लोग मेरे को समझते नहीं है ना. सो दिस देयर आर सम कॉमन थिंग्स. आप किसी भी को कहो कभी भी गलत नहीं होगे कभी भी. तो दोज काइंड ऑफ थिंग्स नाड़ी पकड़ के कहने वाले लोग भी हैं और उसका मिसयूज करने वाले लोग भी हैं. बट इट नाड़ी कोई मिरेक्युलस थिंग नहीं है. इट टेल्स अबाउट मैनी थिंग्स, पर वो एक टूल है. पल्स इज राइट. देन आयुर्वेद इज इलॉजिकल. नो, इट्स एवरीथिंग इज साइंटिफिक. आजकल जो भी साइंस बढ़ रहा है, हमारे पास नोबेल लाने की क्षमता है. आप में से कुछ लोग अगर उसमें काम करेंगे तो ला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना मैटर है. साइंस के पास अभी कहाँ जाना. जैसे मैंने कहा जेनेटिक साइंस में देयर इज अ ब्लास्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, दे डोंट नो व्हाट हाउ टू यूज इट. हमारे पास वो क्लू है और आप लोग उस क्लू को पकड़ के काम कर सकते हैं अगर आप चाहो आगे तो. मैनी पोटेंट रिसर्चर्स आर अमॉन्ग यू. इफ यू गो इन द डेप्थ you can have a very good lead. I am working with the Gandhinagar IIT and other places. अभी नाइपर के साथ हम करने वाले हैं हम. और all those researches, you know, आपको मालूम है 2014 में नोबेल मिला था फास्टिंग को, इंटरमिटेंट फास्टिंग को. यू नो, सुना है?
जापान के साइंटिस्ट को इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए नोबेल मिला। इफ यू डू इंटरमिटेंट फास्टिंग मीन्स आप 15 दिन में एक बार फास्टिंग करते हो तो आपको कैंसर नहीं होगा। सुना है? कहा मुझे कहाँ होने वाला है, ये तो कहाँ लेना देना मेरा। तो एक्चुअली जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो आपके बॉडी में ऑटोफेजी मीन्स बॉडी अपने आप आपका क्लीनिंग शुरू करता है। जो ऐसे सेल हैं जो अनइवन ग्रो होना शुरू हुए उसको सबको करेक्ट करके बाहर करता है, क्लीनिंग होता है एंड आपकी बॉडी अपने आप क्लीन हो जाती है। जो अनइवन इवेंट्स शुरू हुए हैं बॉडी में वो करेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। दैट इज नोन एज ऑटोफेजी व्हेन यू डू द फास्टिंग। जैसे मैंने अभी पहले एग्जांपल दिया ना, रात को आप होमवर्क देके सो जाते हो और सुबह आप तो खाते रहते हो, आप सो जाते हो। बॉडी को कब रेस्ट मिलता है? उसका सिस्टम चलता ही रहता है। हार्ट को कब रेस्ट मिलता है? सो जब आप एक दिन का एकादशी का उपवास करते हो 15 दिन में एक बार, देन दिस हैपन्स टू योर बॉडी। सो इट इज अ साइंस। ऐसे बहुत सारे हमारे कॉम्पिटिशन है। एकादशी आई कहां से? आयुर्वेद से। लंघन करो। सो ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो आपको नोबेल दिला सकते हैं आयुर्वेद में से। वेस्टर्न वर्ल्ड इज टेकिंग द लीड एंड वो उसमें से कर रही हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। देन आयुर्वेद इज हर्बल मेडिसिन। मैंने पहले कहा आयुर्वेद सब कुछ यूज करता है, मिनरल्स, मेटल्स, पॉइजन्स, एवरीथिंग उसमें सब कुछ है। एंड दे नोज वेयर टू गिव एंड हाउ टू गिव और कैसे फायदा होगा। देन अनप्लीजेंट इन टेस्ट एंड हार्ड टू प्रिपेयर। टेस्ट का बड़ा सबको प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद आपको ये पसंद नहीं है, ये दो, ये पसंद नहीं है, जिसको टैबलेट पसंद नहीं है पाउडर दो, पाउडर पसंद नहीं है चाटने को दो, वो नहीं लेता है तो पीने को दो। देयर आर मैनी वेज। कुछ वैद्य ये करते हैं कि नहीं नहीं है तो आपको करना ही पड़ेगा। दैट्स नॉट द वे, एक्चुअली इट इज नॉट लाइक दैट। देन पंचकर्म मीन्स ओनली ओलेशन एंड सुडेशन। पंचकर्म सेक मालिश नहीं है। जैसे मैंने कहा वमन, विरेचन, पूरे बॉडी का क्लींजिंग है। इट्स अबाउट द बायो क्लींजिंग। देन आयुर्वेदिक डॉक्टर्स डिडंट यूज हैव अ नॉलेज अबाउट एक्सरे, यूएसजी, सिटी स्कैन, ब्लड, सिर्फ नाड़ी पकड़ के बताते हैं। नो, एक्सरे ये सब जो ये टेक्नोलॉजी है वो सब फिजिक्स है भाई, या केमिस्ट्री है, उसका किसी मेडिकल साइंस या आयुर्वेद साइंस से लेना देना नहीं। एनीबडी कैन यूज इट एंड इंटरप्रिट इट। Lack of evidence as per the requirements. Now, lot of researches are going in Ayurveda, and there are many evidences. Then Rasaushadhis has many side effects. Rasaushadhi means drugs made from the minerals and metals. You know, even the mercurials are also being used in Ayurveda. Plenty, sulfur and iron and copper and all metal. You give the name. Ayurvedic medicine is there, lead, but they have a special procedure for it to make it detoxified, to make it organic. और वो जो डोज में और जितने समय तक देते हैं, it has a miraculous result and it is working as a medicine. वो कोई हार्म नहीं करती. There are many studies. Then Ayurvedic drug don't have any side effects. एक बड़ा मीथ है. कोई भी ड्रग हो, अरे इवन रोटी भी हो, आप हद से ज्यादा खाओ तो उसकी साइड इफेक्ट होगी, है ना। कुछ भी हो, अगर मैंने जैसे कहा अति करोगे देयर विल बी साइड इफेक्ट्स। सो जैसे कहा है, जिस तरह से कहा है लोगे, नो इश्यू। बट इफ यू वांट फॉलो द डूज एंड डोंट्स एंड इंस्ट्रक्शन, इट कैन हार्म। देन आयुर्वेदिक ड्रग्स शोज रिजल्ट ऑन लॉन्ग टर्म यूज। हम 8 दिन खाएंगे तब रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। देर आर मैनी मेडिसिन, आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा, इमीडिएट, आई एम टेलिंग। आपने लिया और रिजल्ट। देन आयुर्वेदिक ड्रग्स डिडंट हैव एक्सपायरी। दिस इज अगेन अ मिथ। ऐसा नहीं है कि आपके पास 5 साल से दवाई पड़ी है और आप उसको यूज करो, नो, इट हैज, एवरी मेडिसिन हैज एक्सपायरी। देन आयुर्वेदिक फिजिशियन इज वन हु डायग्नोस ऑन द बेसिस ऑफ नाड़ी। इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं। Ayurveda can treat any disease at any stage. No. यूजुअली ये मीथ है कि भाई बहुत लंबे समय से डिसीज है तो आयुर्वेद हर ठीक ही कर देगा। आयुर्वेद में भी कहा है
ये कंडीशन ठीक नहीं हो सकती। ये कंडीशन ऐसी है जिसमें आप लंबे समय तक मेडिसिन रहोगे, लेोगे तो मेंटेन होगी पर करेक्ट नहीं होगी, मेडिसिन छोड़ दिया तो प्रॉब्लम होगी। और ये कंडीशन ऐसी है कि जिसमें कुछ भी कर लो ठीक नहीं होगी। आयुर्वेद ऑल्सो हैज दोज थिंग्स, इट्स नॉट लाइक दैट एनीथिंग। यूजुअली क्या होता है, कहीं ठीक नहीं हुआ चलो आयुर्वेद में चले जाओ वो ठीक कर देगा, ऐसे नहीं है। So in nutshell, Ayurveda is the most oldest mother of all ancient medicine, complete system of human care. It's a holistic approach, and then longest history of practice. 5000 साल से कोई भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एग्जिस्ट नहीं करती। हाईली पर्सनलाइज, इंडिविजुअलाइज, सिंपल एंड इजी टू प्रैक्टिस एंड एडप्ट बिकॉज इट इज फ्रॉम द नेचर। वर्ल्ड इज लुकिंग टॉवर्ड्स एन इंटीग्रेटिव मेडिसिन अप्रोच। आयुर्वेद अभी बहुत सारी चीजों के साथ जुड़ने लगा है। देन द P4, it's already P4 medicine is the best, easiest and cheapest method. It adds on quality of life, health, balance and well-being, providing sword and shield fight with the disease. Allopathy is the only sword, kato, right? Where the Ayurveda is a sword and shield. हर जगह लड़ने की जरूरत नहीं होती, कहीं कहीं सिर्फ प्रोटेक्शन किया काम चल जाता है, वो अपने आप शांत हो जाएगा, बैठ जाएगा, बात खत्म। थोड़ा उसको जोर चढ़ा है, शील्ड लगा दो, वो समझ जाएगा कि ये गड़बड़ है। एवरीवेयर यू नीड नॉट टू कम विद द स्वॉर्ड इन द फील्ड। सो दैट आयुर्वेद टीचेस यू एंड दैट्स द अप्रोच ऑफ द आयुर्वेद। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड आई विल शेयर विथ यू एंड विल फिनिश माई टॉक। ये 2000 साल पहले एक पेशेंट गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर कहता है ये रूट ले लो, किसी औषधि की जड़ है वो ले लो, आप ठीक हो जाओगे। ये आयुर्वेद ही चलता था तब दुनिया में, उस समय की बात है ना। फिर 7वीं सेंचुरी में धीरे 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 वे हमारे वहाँ देश में सब आक्रांता आने लगे और वो दूसरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन आने लगी। तो उस समय पोशंस बनते थे जो मध्य यूरोप से आए, तो वो कहते थे 7वीं सदी में कि ये रूट जो है वो छोड़ दो, अभी ये पुराना हो गया, अभी ये प्रार्थना करो। तब चर्च का और धर्म का बड़ा जोर था, भगवान को प्रार्थना करो आप ठीक हो जाओगे, ये सब कुछ नहीं करता। फिर आया 18वीं सदी में, है ना, और जब मॉडर्न मेडिसिन इजाद हुई उस समय, तो उन्होंने कहा कि भाई ये प्रार्थना और रूट और वो सब गड़बड़ है, उससे कुछ नहीं होता। ये तब आपको याद हो तो सिर्फ सिरप्स मिलते थे, पोशंस, सिरप पी लो आप ठीक हो जाओगे। फिर 1940 में वो पिल्स इजाद हुई, सिरप का जमाना चला गया, गोलियां आई नई, है ना। उसके पहले गोलियां नहीं थी वहाँ, तो ये सब नई गोलियां आई। वो कह रहे ये सिरप बिरप सब ओल्ड हो गया है, टेक दिस पिल्स दैट विल करेक्ट यू, आप अच्छे हो जाओगे, आपके हेल्थ के लिए ये ज़्यादा सही है। फिर अराउंड 90s एंटीबायोटिक आया, बोले वो सब गोलियां उससे कुछ नहीं होता, ये एंटीबायोटिक इज द सॉल्यूशन टू ऑल द थिंग्स। आप एंटीबायोटिक लो सब सेट हो जाएगा, आपको कोई खाने पीने की परहेज की जरूरत नहीं है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, एवरीथिंग विल बी फाइन। देन 2000 फिर से हम बैक टू स्क्वायर वन। ये एंटीबायोटिक आर्टिफिशियल है, ये आपको हार्म करेगा, टेक दिस रूट, ये औषधि है, जड़ ले लो आप अच्छे हो जाओगे, ये सबसे अच्छी है। सो वी आर अगेन कमिंग टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन। दुनिया फिर से गोल घूम के वहीं आ रहे हैं जहाँ से हम शुरू किया था, जहाँ से हमने शुरू किया था। एंड दिस इज नॉट अबाउट हेल्थ ओनली, दिस अबाउट ऑल वॉक ऑफ आवर लाइफ। हमारी जो ट्रेडिशन है दुनिया घूम के वापस आ रही है। ओपनहाइमर कितने लोगों ने देखी थी? कमी लेकर। ओपनहाइमर में आपने उस साइंटिस्ट को सुना था कि भाई वो विष्णु पुराण से उसने एक श्लोक लिया और गीता उसने पढ़ी और उसके ऊपर से उसने एटम बम इजाद किया, सुना था? सो दे आर लर्निंग फ्रॉम अस और हमको फिर सिखाते हैं।
पता नहीं हम कब सीखेंगे हमारी चीजों को. सो विद दिस वर्ड, science fishes in the sea of reality with the particular kinds of nets and called scientific methods, and there may be much in the sea which the meshes of the science net cannot catch. Science सब कुछ नहीं समझ सकता, right? So thank you, thank you. थैंक यू वेरी मच. एंड आई होप कि आपके थैंक यू. आई होप कि मैंने आपको बोर नहीं किया. आई ट्राई टू एनी क्वेश्चंस? दो ही सूरत में क्वेश्चन नहीं होते, या तो ऊपर से गया या सब कुछ समझ गया, या ऐसा है कि जान छोड़ दो अब. So thank you very much, and I am thankful to organizer for giving me opportunity to share the wisdom of Ayurveda with you. Thank you very much. Good morning. On behalf of GSFC University, I extend our sincere gratitude to Professor Anup Kumar Thakur for his enlightening session on Ayurveda. His profound knowledge and passion for holistic wellness have given us a renewed appreciation for this ancient science and its relevance in modern healthcare. The practical insights and examples shared today have inspired us to consider Ayurveda as a means to achieve balance and well-being in our lives. Now I'd like to call Dr. Krunal Soni to felicitate Professor Anup Kumar Thakur with a memento.